higher education institutions, lecture method is mostly used, which is not fulfilling all the needs for which the students are to be prepared. If we look into the scenario, uh, industrial scenario, wherever students are getting jobs, you will see that in addition to the technical knowledge, students need. अच्छा 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 सुन तो नहीं रहा ये तो नहीं सुन रहा so the students need certain other skills for uh, for their jobs, for performing their jobs efficiently. Now the nature of skills in addition to this technical knowledge know-how is that they are good in communication skills, they are confident, they have learning to learning skills. I mean to say what we call as the employability skills or the soft skills, they must be equipped with them. Only lecture method, through only lecture method, teachers will not be able to develop such type of skills among the students. For that matter, we are just discussing few more methods which can help students in developing such employability skills. So they are case teaching method, brainstorming and collaborative learning. Under these methods, I will be discussing the what we mean by these methods, how to conduct these methods, what are their advantages and disadvantages. Of course, that you will observe yourself also. So let me come to first of all the case teaching method. Let me be very clear on the in the beginning. My session will be more of the interactive session. So I will like to hear from various centers, participants from various centers, what they know and how they are taking the things. So what first of all, let me just give you the meaning of this case teaching method. This case teaching method is, it's a case is just a reconstruction of real life situations which are examined by one or a group of students. So let me here stop. So we have a case which looks like a real, which is depicting a real life situation from the industry or where the concept, engineering concepts can be applied. Then it says examined by one. Point is either student can individually go through the case, analyze the case, or you can ask group of students, maybe 5 to 6, you can make certain some groups of your class and give them the case to go through that. Now of course, for responding to the questions given on the under the case, they have to use their mental skills for establishing general principles which are illustrated by particulars of the case. Now here you can adopt two approaches. You may teach general principles first and ask the students to search for those when they are discussing the case. Or the other way can be, you don't tell them any general principles. When they go through the case, discuss the things, and then they reach at the, they conclude, they come out with the general principles. Let me just show you these two things, situations. So first is particulars given. And they think and discuss where those principles are applied, and for that matter they apply deductively. So let us see how we go about it. We will actually take a case and see how these things apply in that situations. So how we conduct a case study? You are first of all to select an appropriate case which looks like real. Now
For that matter, you may have to go to industry, you may go to search for the through the web also. And keeping in view your principles and your contents, you may little bit change that case also. And if you feel that the case given as such on the website or in a book or otherwise, that is okay, that is perfect, that fulfills the things which you really want to teach to the students, then you can take the case as it is. So once the case is selected, then the second thing is that the content of the case now demonstrates the principles to be done. Either way, you may go by inductive way, you may go by deductive. We distribute the case to the students, maybe individually or in a group. And for that matter, this case can be in the form of a written material, and it can be in the form of a video film also. So anyway, you can apply this thing. Let's just have a case. So I am, before going into the case, I just narrate some of the advantages of this. Now, when you are just teaching through the lecture method, they are not able to visualize what is the practical implication of that case. Now, when you are using case method, students really apply those theoretical concepts and principles to the situation. So the gap between theory and practice is minimized. You see, if that gap is not there, the student automatically feels more interested in learning the things. So it encourages active learning. When you are just telling the students, this is the principle, this is the principles, then students are not actively involved. They are just the passive listeners. Let me just say, I am speaking and you are just the passive listeners. Now, if I give you the case to analyze, what will happen? You will start working and I will be just the facilitator for that. That is what is desired in the case teaching. And this provides opportunity for development of skills, which I mentioned earlier. That is the employability skills. Employability skills are nothing but their communication, group working, that is team building, and the problem solving. So when they discuss these things among their own peers, they develop such type of things. And when they come out with certain solutions, of course, they develop the confidence also. So increase students' enjoyment of the topic and hence their desire. Let's now take a case. Just go through the case carefully. This is the case of the blind man with a lamp. Let me just be clear. Everybody in all the centers is able to see the PowerPoints? Yes? Let me first ask Shiva College Bilaspur. Are you okay with the, you are able to read the PowerPoint? I'm giving you this case. Are you able to read it? आपको ठीक से पढ़ पा रहे हैं? आप इस तरह से एडजस्ट करिए कि आपकी सारी जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं वो सारे इस केस को पढ़ सकें. ठीक है मैडम, ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं. गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर. जी मैम. Are you able to read the case? In any way, I am going to read it for you, but I wish that you are also able to see it. Response नहीं आ रहा. JCDM सिरसा. Yes, JCDM सिरसा. थोड़ा सा कंटेंट साइड से कट रहा है, ये शायद थोड़ा जूम कम करने वाला है कैमरा का. परमजीत थोड़ा नीचे से भी कंटेंट कट रहा है. हाँ, साइड से कट रहा है. साइड से जैसे वंस अपॉन जो है वो NCE से आ रहा है, वो नहीं आ रहा है. ओह ओके, वो लेफ्ट साइड कट रही है. लेफ्ट एंड राइट मैम, जैसे एंड में शायद. जस्ट रीड इट. हाँ जी, मैं अपनी वैसे पावर पॉइंट पे थोड़ी और एडजस्ट कर लूंगी बाद में. तो आई जस्ट रीड इट ऑन सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेटिक कट रहा है. हाँ मैम, फर्स्ट एंड लास्ट वीक शायद कैरिंग लिखा, कैरी आई आ रहा है एंड तक. कैरिंग ओके, पूरा नहीं आ रहा परमजीत. फिर भी मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ साथ में. आई थिंक यू विल बी एबल टू fill the gap. Yeah, that will be fine. It says, it reads as, once upon a time, a blind man carrying a lantern was walking down the street at night. Someone asked
You can see and you cannot see anything. Why do you take the lamp with you? Then the blind man answered, when I do so, others would be able to see me and not knock me down. You learnt about the case? केस सिचुएशन सबको सभी सेंटर्स ने देख ली है, समझ ली है? हाँ जी, लेट मी स्टार्ट अगेन बाय वन। जेसीडीएम सिरसा, आपने केस सारा पढ़ सके हैं? मैंने वैसे जो कट रहा था मैंने बोल दिया है। हाँ जी मैम। एंड आई होप द सिचुएशन इज बिट बेटर नाउ। यस मैम। वेरी गुड। तो आपके सेंटर पे सबने पढ़ लिया है केस? ओके, लेट मी कम टू द नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली। हाँ जी, आपने सबने पार्टिसिपेंट्स ने केस पढ़ लिया है? हाँ जी, केस पढ़ लिया आपने? प्लीज जस्ट रेज योर हैंड्स। Are you able to go through it? Done. It's done. Good. What about Government Engineering College Bikaner? हाँ जी, Government Engineering College Bikaner. Okay, Shiva College Bilaspur. Shiva College Bilaspur. बिलासपुर पे आने। हाँ जी, have you gone through the case? यस मैम, हम इसको पढ़ सकते हैं। ब्लाइंड मैन विद ए लैम्प। ओके, हम थोड़ी देर के लिए साइन लैंग्वेज पे चले जाते हैं। If you have gone through the case, just raise your hand. So I understand from JCDM Sirsa, everybody has gone through the case, right? Am I right in saying this thing? Good. Okay. This North India Engineering College, Delhi. Are you able to go through the case? Because now I am going to give you a question. हाँ जी, दिल्ली में सबने पढ़ लिया? हाँ जी, have you gone through the case? Now there is one question on it. Question is, in the view of safe production, what can this story tell? You can discuss this in a group, and let me form the group as the whole college, because I see there are not number of participants in each of the group. I take the total college, all participants in that in particular center as the group. So you just discuss this case, taking care in view of this safe in the safe production. What can this story tell you? Just discuss. I give you 2-3 minutes for this, right? You just go through it and come up with the answers. Yes, work on it, please. You can discuss. Have your time. Anji, let me request again participants at JCDM Sirsa, Northern India Engineering College, Delhi, Shiva College Bilaspur, and Government Engineering College Bikaner. Just discuss the case among yourselves, and जिसका केस डिस्कस होके कोई solution आ जाए, that group will raise hands. ये कलर कंट्रास्ट का चक्कर है। गुड आफ्टरनून मैम। कंट्रास्ट का चक्कर है, क्यों पढ़ते नहीं आ रहे हैं? उस दिन कहते थे ना कि कोई देखो शक्ल नहीं तो कुछ फीडबैक दे तो चेंज कर दे। हाँ जी, any center who has done it, please raise your hands. Ma'am, this is Gurpreet from JCDM College of Engineering.
थोड़ा आवाज ऊंची करेंगे? हाँ मैम जी प्लीज। ये कुछ इस तरह से जैसे हमें जो हमारे ग्रुप में डिस्कशन हुई है, आपका आपका ग्रुप है, सॉरी जेसीजीएम कॉलेज ऑफ सिरसा। ओके इंजीनियरिंग ओके, सिरसा। हाँ जी सर, हाँ जी प्लीज। मैम इसमें जैसे जो दैट ब्लाइंड मैन ही इज रेजिंग अ काइंड ऑफ फ्लैग, मींस ही इज इंडिकेटिंग दैट मींस ही इज क्रिएटिंग फॉर हिम, लाइक किसी दूसरे की मिस्टेक से मतलब वो खुद भी ना हार्म हो। सो ये इसलिए वो सेफ साइड शो कर रहा है उसको, मतलब एक लैंटर्न उसके हाथ में है अगर तो ठीक है। ये वो इसलिए ले रहा है कि अगर किसी दूसरे की मिस्टेक भी है तो वो सेफ रह सके उससे। नाउ व्हाट इज द मैसेज फॉर द सेफ प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री? क्योंकि हम अल्टीमेटली केस को किसी थेरेटिकल कंसेप्ट के साथ रिलेट करके आगे चल रहे हैं, तो दैट इज व्हाई द क्वेश्चन इज कि इंडस्ट्री की सेफ प्रोडक्शन, जैसे आपका प्रोडक्शन पे आता है, सेफ प्रोडक्शन पे एक सब्जेक्ट होता है कई इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में, तो व्हाट मैसेज इट गोज। आपने बहुत सही एनालाइज किया है कि एक ब्लाइंड मैन दूसरे पर्सन से अपने आप को सेव कर रहा है, किसी की गलती से मैं ना टकरा जाऊं। तो व्हाट दिस मैसेज गिव्स टू द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में सेफ प्रोडक्शन के लिए क्या मैसेज है ये? यस मैम। जस्ट व्यू इट इन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आप दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, डजंट मैटर, प्लीज डिस्कस अगेन। लेट मी द नेक्स्ट सेंटर। माई सेल्फ हाँ जी, सुनील फ्रॉम शिवा। आप कुछ कहने जा रहे थे? यस मैम। नॉर्दर्न इंडिया, हाँ ये नॉर्दर्न। शिवा इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर ओके, से बोल रहा हूँ। आप नेक्स्ट शिवा कॉलेज पे चले जाएं। जी मैम। इस स्टोरी का जो आप इसको पढ़ के सोचें। जो सेफ प्रोडक्शन योर नेम इज रिगार्डिंग प्रीति? इंडस्ट्री में जो डिस्कस दीप्ति। हुआ है हमारे अपने ग्रुप में, हमने इसमें देखा है कि Sorry, Delhi Center, I am not able to hear you. I'm sorry for it. नॉट अच्छा, ऑडिबल। शिवा वालों की नहीं आ रही है। दिल्ली का उनकी भी कम है। आ, आपको दिल्ली सेंटर आपने शायद अपने इंटरनल बिलासपुर। वॉल्यूम कम की हुई है, प्लीज इसको बढ़ा रहे, तभी आपकी आवाज हमें सुनाई देगी। We are not able to hear you. हेलो। शिवा, हेलो, अभी ठीक है सर थोड़ा। हेलो। सॉरी, आपको रिपीट करना पड़ेगा, हम आपको सुन नहीं पाएंगे। सर अभी बोलिए। यस मैम। हाँ जी अभी ठीक है सर, बोलिए। हाँ जी। इसमें इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि इंडस्ट्री में सेफ प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हमें अपना भी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपना सेफ्टी भी रखेंगे साथ में औरों को सेफ रखेंगे, जैसे ब्लाइंड आदमी है वो अपने औरों को तो नहीं देख सकता है बट वो अपने आप में ये चीज़ महसूस कर सकता है कि हमें जैसे लाइटनिंग दी लैंप, उसने लैंप को लाइट करके आगे बढ़ रहा है तो उसका मतलब कि उसको कोई और भी देख रहे हैं। इन द साइंस इन द इंडस्ट्री उस चीज़ में हम अपने आप को सेफ्टी में रखते हुए औरों को भी सेफ रख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? माई सेल्फ सुनील कुमार। सुनील जी मैम। जी, सुनील कुमार जी, आपने बहुत सही से केस एनालाइज किया है, पर मुझे लगता है आपने इंडिविजुअल लेवल पे किया है, आपकी ग्रुप के साथ डिस्कशन की। तो इन एनी वे यू आर डन ए गुड जॉब। ओके, एंड नाउ आवर पार्टिसिपेंट एट बीटीवी स्टूडियो, दीप्ति के पास में जा रही हूँ। तो दीप्ति, आप बताएं कि सेफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री में देखेंगे इस केस से क्या मैसेज मिलेगा? मुझे तो लगा मुझे जैसे इंडस्ट्री में जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल प्रोफेशनल्स होते हैं, जो हाँ बोलो बोलो प्लीज। जो एनालाइज कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने जो भी वो प्रूव कर रहे हैं दे शुड बी मच मोर शेक ना हो, और उनके ऊपर अलग अलग हैक भी उन्होंने करती है जो उनको देख रहे हैं मिस्टेक ना। ओके, जो दीप्ति हमारे स्टूडियो में आई हुई है फ्रॉम हरियाणा, शी सेल्स के इंडस्ट्री में प्रोफेसर होते हैं। अब आप एक चीज, क्योंकि मेरा एम जो है ना आपको केस में पढ़ाना नहीं, उसको हम लेके कैसे साथ चलते हैं तो दीप्ति ने पहले थोड़ा सा डरते हुए मुझे कहा है कि वहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं,
अगर इंडस्ट्री में हो सकता है प्रोफेसर ना, तो माइंड ऑफिसर्स वगैरह हैं, तो उनकी बेसिकली जो काम करना है वो एक आम स्किल वर्कर नहीं करना है। या एक आपका पॉलिटेक्निक का पर्सन है तो वो एक सुपरवाइजरी लेवल पे लगता है, इंजीनियर है वो खुद करना पड़ेगा तो सुपरवाइजरी लेवल और वो डायरेक्शन देते हैं। अब यहाँ पर rightly said by Sri from Shiva College Bilaspur and I forgot the name of the participant from Sisa कि ये जो केस है यहाँ आप प्रोएक्टिव होते हैं, you don't depend on other कि which are the same principles. Now let us see what are the same things, analysis of the cases. Now philosophy behind this is take measures to avoid being hurt. कि चोट खाने के बाद में हमने प्रिकॉशन लेना है, प्रिकॉशन लेना पहले एज द ब्लाइंड पर्सन। तो क्या किया, मुझे हर्ट ना करे, लेकिन वेट कि मेरे को कोई हर्ट करे फिर मैं कुछ करूं, तो वी टुक द एक्शन बिफोर। सो एज इसी तरह के सेफ्टी मेजर्स के लिए देयर आर 3 प्रिंसिपल्स, डू नॉट हार्म प्रिंसिपल्स को कहते हैं। तो इसमें से हमने पहले प्रिंसिपल्स पढ़ाए नहीं, जैसे मैंने कहा था कि रिटन होगा इफेक्टिव अप्रोच और रिटन अप्रोच। अगर मैं पहले 3 प्रिंसिपल्स पढ़ा देती और फिर भी सिचुएशन देती, देन दे वुड हैव जस्ट अप्लाइड दोस प्रिंसिपल्स। अब मैंने क्या किया है, मैंने प्रिंसिपल्स पढ़ाए नहीं है पहले। आई हैव आस्क्ड यू टू कम आउट ऑफ दिस थिंग। देयर मे बी student may not come up with the right answer, right? That's not the question. Point is that they discuss, they communicate, they work in team, and of course they apply their brain on the given situation, not just going for the rote memory of the 3 principles. This is more desired to prepare ourselves, our students, for the world of work. So do not harm principles in safe production is demonstrated through this case. What this blind man is worth following, since only mutual supervision and reminding during production can secure we can come to the safe production. So this comes out from the case. Let me just give you another case. I won't give you the time for for discussing, but I will just show you this case, how the principles, the theories, certain theories, principles, they are applied in the industrial situations. So just though the paragraph is bit longer, I just go through it for you. Say one day, I hope everybody can read it. One day blowout happened while drilling high pressure gas reservoir. इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर सर, आपका माइक चल रहा है, अभी बंद हो गया। हेलो हेलो, यस सर, वर्किंग है आपका माइक। हो गया ना? ओके, यस सर, ओके हो गया। Of the drilling team who had just from college went across the mud line to pick up the mud samples. तो एक टेक्नीशियन है जो वहाँ काम कर रहा है और ऐसी सिचुएशन में वो मड सैंपल लेने के लिए चला गया। He was knocked to the ground and died instantly by raising pipeline because the pipeline was not fixed firmly and pipeline pumping pressure release. So इस चीज के ना होने से, now what is the implication if the pipeline pumping pressure release, the such type of pipes are not properly joined, what can happen in the industry? So this case tells about this. Now this is based on certain principle because it is coming from the idea of the trajectories cross theory of accident causation. So instead of, after even teaching, I would say the trajectories cross theory of accident causation, you can give this case to the students and let them see how this theory is applied actually in the industry and what can happen if such type of things are not applied, not taken care of in the industry. So the questions which were given, now so you see application case based on a real personal injury accident. अब मैं जो हम पहले केस की डेफिनेशन लेके चले थे कि इट इज ए रियल लाइफ सिचुएशन थिंग, तो ये जो चीज है ये पर्सनल इंजरी का रियल केस है। आफ्टर स्टडिंग द केस, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रैजेक्टरीज क्रॉस थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट कॉजेशन। तो अब स्टूडेंट्स ने पहले थ्योरी को एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट के रूप में लिया था
अब वो इस दोनों चीजों को रिलेट करेंगे। देन रिस्क फैक्टर्स फ्रॉम ह्यूमन बिहेवियर्स, they will come up with this। अगर unsafe behavior across high pressure loop pipeline होगा, then it can damage a lot, even damage the life of a person. So such things are coming out from the case। अब आप दोनों तरह से, जैसे मैंने कहा था, चाहे आप डिडक्टिव अप्रोच लेके चलें, चाहे आप इंडक्टिव अप्रोच लेके चलें, मतलब चाहे आप पढ़ाने से पहले केस दे दें, that becomes the inductive approach, चाहे आप पढ़ाने के बाद केस दें, that becomes the deductive approach। so आप कोई भी प्रोसीजर लेके चल सकते हैं। this is how we go। so what you have seen, केस स्टडी मेथड यूज करते वक्त आपने केस दिया, आपने क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि आई हैव शोन इन दी एग्जांपल्स। नाउ स्टूडेंट्स, एज वी सेड, कैन रिस्पॉन्ड इंडिविजुअली और इन ए ग्रुप, रिव्यू एंड क्लैरिफाई आइडियाज। अब आप उनको टाइम दे सकते हैं। नाउ लेट मी आस्क फ्रॉम यू, अगर आप सेमेस्टर में सिर्फ 2 केस भी ऐसे लेके चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स यू आर गोइंग टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट्स? हाँ जी, एनीबॉडी फ्रॉम एनी सेंटर? एनीबॉडी फ्रॉम एनी सेंटर? हाँ जी, लेट मी स्टार्ट विद शिवा कॉलेज बिलासपुर। हाँ जी, सुनील जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सुनील फ्रॉम बिलासपुर, आपका ग्रुप कुछ बोलना चाहता है? आर यू एबल टू हियर मी? यस मैम। हाँ जी, अगर आप सेमेस्टर में 2 केस भी इस तरह लेके चलते हैं, तो कौन सी स्किल्स आप स्टूडेंट्स में डेवलप कर पाएंगे? पार्डन मैम, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे मैम आप प्लीज? अगर मान लो आपका पूरा सेमेस्टर होता है, जनरली टीचर्स कहते हैं हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता, मैंने जो 3 मेथड लिए हैं, मैं कहती हूँ सिर्फ 3 मेथड्स को 2-2 बार टाइम दे दो आप, ठीक है? मैं पहले केस मेथड का लेके चल रही हूँ। केस मेथड आपने 2 बार सारे सेमेस्टर में 2 या 3 बार आपने केस देके स्टूडेंट्स को ग्रुप्स बनवा के ऐसे ही एनालिसिस करवाया, तो क्या कोई स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग में फायदा होगा? नहीं मैम, स्टूडेंट्स इतना अच्छी तरह नहीं उसको समझ पाएंगे, क्योंकि बच्चे जब रेगुलर रहेंगे क्लास में तभी वो बच्चे जो है उस चीज़ को समझ पाएंगे। क्योंकि हमारा जो टीचिंग स्किल्स है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हम बच्चों का कितना इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं क्लास के अंदर। तो नहीं, मैं नहीं कहती हूँ कि वो खुद पढ़ेंगे, आप इंडक्टिव अप्रोच मत लगाओ, आप पहले वो प्रिंसिपल्स पढ़ा दो। जैसे मैंने ट्रेजेक्टरीज के बताया, जैसे मैंने कहा कि 3 प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ प्रोडक्शन, तो वो तीनों चीज आपने पहले पढ़ा दिया, फिर उनको आप केस देते हो। और जब केस देते हो तो ग्रुप ऐसे नहीं बनाते हो कि सारे इंटेलिजेंट एक में डाल दिए और सारे लो एबिलिटी एक में डाल दिए, नहीं, आपने मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी है। कुछ थोड़े से अच्छा एनालिटिकल पावर वाले, कुछ एवरेज, उनको मिला के आपने 2-3 ग्रुप्स बना दिए। पढ़ा आप पहले ही चुके थे, अब आपने उनको केस कह दिया। मान लो स्टूडेंट केस का मीनिंग डेसिफर नहीं कर पाते हैं, आप वहां पे तो मौजूद हैं, आपने कोई खड़े थोड़ा रहना है, आपने उस केस का मीनिंग भी समझा दिया। अब उनको आप कहते हैं कि हाँ जी आप डिस्कस करो, तो क्या उसका फायदा होगा या नहीं होगा? मैम, इसमें हम बच्चों को डिफरेंट जो केसेस हम देंगे, और उसमें जो बच्चे हमारे कुछ मीडियम बच्चे हैं, कुछ इसमें स्कॉलर्स हैं, कुछ बच्चे जो एवरेज बिलो एवरेज हैं, उन बच्चों के हम ग्रुप्स बना के उन बच्चों को कंबाइंड हम उनका ग्रुप डिस्कशन भी करवा सकते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर केस। जो भी केस हमने दिया है उन कंबाइंड बच्चों का हम उसमें उन बच्चों को कंबाइंड ग्रुप डिस्कशन के अकॉर्डिंग जो है वो केस को स्टडी कर सकते हैं, एनालिसिस। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे सुनील जी। अगर आप इतना मैं कहती हूँ टू बिगिन विद, आप 2 बार क्यों, आप सिर्फ 1 बार सेमेस्टर में ऐसे ही ग्रुप्स बनाएं जो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप्स होंगे, ठीक है? आपका काम क्या होगा वहां पे, थोड़ा देखना कि सब बच्चे बोल रहे हैं, सब बच्चे केस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर कुछ बच्चे मान लो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उनको प्रोब करोगे भी, सोचो और बोलो आप भी, ठीक है? जब वो सारे लोग केस एनालाइज कर लेंगे, फिर आप अपने साथ उनकी डिस्कशंस करवाएंगे। तो आप, जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ केस पढ़ो और केस बताओ, अब बाकियों को मौका नहीं मिला है आपके साथ,
पर आपको बोलने का मौका मिल रहा है। तो जब आपको बोलने का मौका मिला, जब मैंने आपको केस दिखाया, आपने उसको पढ़ा, सोचा, एनालाइज किया, तो क्या आपके स्टूडेंट्स ये सब नहीं करेंगे? आपके स्टूडेंट्स भी यही करेंगे। तो दैट इज व्हाट इज डिजायर्ड। सो केस स्टडी की एडवांटेज है कि आपने एक लाइफ सिचुएशन दी है जहाँ पे कि कोई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल जो कि आप क्लास में पढ़ा रहे थे उसकी सिचुएशन दी, स्टूडेंट ने एक विजुअलाइज किया कि ओके ऐसा थ्योरेटिकल कंसेप्ट इस तरह से इंडस्ट्री में यूज होता है। तो क्या हुआ, आपका जो लंबा लेक्चर था हो सकता है वो उसको इतना मोटिवेट नहीं कर पाएगा जितना कि वो स्टूडेंट केस पढ़ेगा, आपके बताए हुए कंसेप्ट को अप्लाई करेगा और फिर देखेगा कि अच्छा ऐसा होता है इंडस्ट्री में। तो फिर वो क्या होगा, मोटिवेशन अपने आप से उस चीज के लिए, उस कंसेप्ट के लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा। मैं नहीं कहती कि सारे के सारे स्टूडेंट्स एकदम प्रोफाइल बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, राइट, पर चेंज आना शुरू होगा विच इज डिजायर्ड। फिर स्टूडेंट्स कैन सी द रेलेवेंस ऑफ लर्निंग टू फ्यूचर जॉब्स, ये बहुत जरूरी है। जब आप थ्योरी ही थ्योरी पढ़ाते चले जाते हैं और वो रट्टे लगा के फाइनल एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर देता है, तो बाद में 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद रिटेंशन ऐसी है कि सब कुछ भूल जाता है। पर जब आप ऐसा करते हैं तो दिमाग में जब वो 4 बच्चों के बीच में कुछ बोलता है, सुनता है, तो वो जो चीजें हैं वो लंबे टाइम के लिए अब उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाती हैं, विच इज डिजायर्ड। अब थैंक यू जी। हाँ, तो डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे साथ। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि केस स्टडीज टेक ए ग्रेट डील ऑफ टाइम टू प्रिपेयर। आपको कुछ केसेस हो सकता है वेबसाइट पे, आजकल आई रिमेम्बर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की कुछ केस स्टडी की बुक्स हैं, वो भी मिल जाती हैं। अगर आप वेबसाइट पे ढूंढोगे तो आपको कई आपके अपने डिसिप्लिन के भी पेपर्स ऐसे मिल जाएंगे। आफ्टर ऑल मैंने ये दिस इज नॉट माय केस, मैंने भी वेबसाइट से ही किसी की उस रिसर्च वर्क से ही लिया है। तो ये जो चीजें हैं आप अपना कुछ बना भी सकते हैं, विद योर एक्सपीरियंस यू कैन मेक द केस आल्सो। आप कोई इंडस्ट्री का प्रॉब्लम देखें जहां आपको लगे कि ये कंसेप्ट आपका लग रहा है, आप कुछ रियल लो, कुछ फैब्रिकेट करके उसको बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में जो कोई आपका स्टूडेंट समझ सकता है उसमें लिख के उसको यूज कर सकते हो। पर नेचुरली अगर मैं एक क्लास लेती हूँ, सारा डेरिवेशन पढ़ा देती हूँ, तो उसमें बहुत कम टाइम लगेगा। केस स्टडीज में टाइम ज्यादा लगेगा, उसको बनाने में भी और उसके थ्रू पढ़ाने में भी। इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि आप सारी टीचिंग केस पे ले जाओ, पर अगर आप कुछ प्रैक्टिकली शुरू करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डेवलप these skills which are really required in the industry. Then the whole case study operation requires considerable time in teaching through this also. And lastly, आप प्रैक्टिकल स्किल्स में के लिए केसेस नहीं होते हैं। हाँ, प्रोडक्शन के मीन्स प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं इंडस्ट्री में, ऐसी चीजें आप केसेस के थ्रू ले सकते हैं। पर अगर आप कहो कि प्रोडक्शन दिस प्योर मोटर स्किल्स उससे पढ़ा देंगे, तो वो मोटर स्किल्स वाली एबिलिटी आप केस मेथड के साथ नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केस मेथड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस you are welcome. If you have any question for regarding case method, you are welcome for that. If no questions, I move to the second method. Any person from Sirsa, Delhi, Bilaspur and Bikaner? And let me have questions from here also, from students. No confusion, just I go to very good. She has asked for a question related to the conclusion of the study. Hello, हाँ जी, I'm calling from Mahatma Engineering College. Hello. हाँ जी, प्लीज आवाज थोड़ी साफ नहीं है। As far as all these safety measures are concerned, I feel this we can apply only in the laboratories. But what about the classroom? I am आपकी आवाज इतनी कट रही है कि I am not able to make out कि क्या कह रही हैं आप ना। अनुराग जी कुछ हेल्प हो सकती है? हेलो, आप थोड़ा अपना माइक्रोफोन पास लगा के लाके थोड़ा थोड़ा ऊंचा बोलेंगे तो हमें सुनाई दे जाएगा। हेलो। हाँ जी, आप बिल्कुल क्लियर है। हेलो। हाँ जी, बताइएगा। हाँ बेटी मैडम। हाँ जी, बताइए जी, बताइए। हाँ
हम यहाँ ईसीबी पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर से बोल रहे हैं। हाँ जी, बताइएगा हाँ सर। हाँ, जो आपने केस स्टडी के बारे में हमें डिटेल बताया हाँ जी, है ना, उसका इम्प्लीमेंट हमने यहाँ करके देखा। अच्छा जी, हाँ, एंड वी आर गेटिंग द गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स एज वेल वेरी फ्रॉम द फैकल्टीज आल्सो। वेरी गुड, And we got an idea that being the study of the case study, student can elaborate their views on the वेरी। paper and pencil paper. मे आई नो योर गुड नेम? My name is Subhash Kumar. सुभाष कुमार जी, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। किसी वक्त हम आपको से और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, किस तरह Thank के you. आप केसेस देते हैं, कैसे बनाते हैं। अगर कोई बीच में टाइम मिला, वी विल हैव योर 5-10 मिनट्स टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ and in location of cases and for which areas you are doing it. You are doing a wonderful job. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. हाँ जी, तो आप देख लें, ऐसा नहीं है कि इंडिया में लोग यूज नहीं करते हैं ये मेथड। और जैसा कि This सुभाष is जी ने, very beautiful ideas. This is very beautiful ideas. हाँ जी, जैसे कि सुभाष जी ने बताया है कि केस मेथड जब आप यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स को भी इंटरेस्ट बढ़ता है। जब आप थ्योरी ही थ्योरी पढ़ाते हैं, मेरा ख्याल है मेरे सेशन में कई लोग सो सकते थे, 2 बजे के बाद का सेशन है। तो आपका जो ऐसे ही जो क्लासेस हैं उसके कोई टाइम फिक्स नहीं है। आफ्टरनून क्लास में जितना आप स्टूडेंट को एक्टिव लर्निंग की ओर ले जाएंगे, उतना ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। जितना आप पढ़ाते जाएंगे और स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट मिनिमम रखेंगे, उतना ही स्टूडेंट ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो पर्पस है, हमारी टीचिंग तब सक्सेसफुल है, ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया और बात खत्म हो गई। इट्स नॉट लाइक दैट। बात है कि स्टूडेंट याद रखे, उसको समझ आए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जब तक हमारा ये एम रहेगा कि मैंने पढ़ा दिया, तब तक हम दूसरी एफर्ट्स नहीं करेंगे। जब हमारा एम बन जाता है कि स्टूडेंट को लर्न करवाना ही करवाना है, देन वी थिंक ऑफ डिफरेंट एंड दिस टाइप ऑफ मेथड। और बिकॉज आज के दिन में हमारी इंडस्ट्री को सिर्फ वो स्टूडेंट नहीं चाहिए है जो टेक्निकल नॉलेज में बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स टेक्निकल नॉलेज हर वक्त टॉप पे रहेगी, पर इंडस्ट्री को साथ के साथ चाहिए है कि स्टूडेंट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं, जेनरिक स्किल्स भी कहते हैं, उनका होना बहुत जरूरी है। और अगर हम कहें कि ये जिम्मेवारी सिर्फ टीपीओ की है, तो नहीं हो सकता है। ये अगर जिम्मेवारी टीचर्स ले लेते हैं, तो सभी में आप मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस वगैरह आप डेवलप करेंगे, which should be the aim of teaching in the engineering technical courses. Okay, now our madam Dipti in our studio, she is saying कि just एक बार केस दोबारा दिखा दें about the blind man। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रही थी, just this was the case कि blind man ने अपने साथ लैंटर्न रखी है कि लोग उसको ना हिट कर ले, so he is playing a proactive role। तो इसमें जब हमने क्वेश्चन दिया तो we wanted that what type of proactive actions can be taken in the industry so that accidents are not there। तो आप देखें there are 3 principles होते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट क्योंकि मेरा एम डिफरेंट है। सो प्रिंसिपल क्या है? डू नॉट हार्म प्रिंसिपल्स इनको बोलते हैं। तो डू नॉट बी हार्म्ड, अगर हम डू नॉट बी हार्म करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? वन इज द प्रोएक्टिव। तो इस तरह के प्रिंसिपल्स को पढ़ाने के लिए बजाय कि वो 3 प्रिंसिपल को याद करके रट्टा लगा के एग्जाम में दे दे, he should digest those things कि ये कैसे है और किस तरह implications हैं। ऐसे ही मैंने दूसरे केस की बात की थी जो ट्रेजेक्टरीज से रिलेटेड था कि हमने तो एक डेरिवेशन टाइप पढ़ा के दे दी कि हाँ ये थ्योरी होती है, ये प्रिंसिपल होता है, बट हाउ इट एक्चुअली इज अप्लाइड इन द इंडस्ट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एडिशन टू जस्ट टेलिंग about the theory part only. So now I come to the, if you have any more questions, you are most welcome. I move to the second method, that is the brainstorming method. Anybody who can tell me the meaning of brainstorming? Brainstorming word सुना होगा, क्या होता है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का मीनिंग क्या होता है? आप लिटरल मीनिंग देख लो, 2 चीजें है ना, ब्रेन स्टॉर्म, क्या होगा? प्रॉब्लम है, ब्रेन है और स्टॉर्म है, तो क्या हो जाएगा?
मंथन कर दो इसका। हमारे अनुराग जी बड़ा सही कह रहे हैं, मंथन कर दो। तो हम मंथन करें, बट मंथन करने से पहले लेट मी आस्क फ्रॉम एनी सेंटर, कोई बोलना चाहेगा? हाँ जी, या स्टूडियो से कोई बोलना चाहेगा? हाँ जी, आपका नाम क्या है? हाँ जी, प्रदीप। तो प्रदीप जी कुछ कहना चाहेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में? आप, मैं बताऊं, ये चीज है क्रिएटिविटी के लिए, जो दिल में आता है बोल दीजिए, मत सोचिए गलत है ये ठीक है, यही से ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो ये जो दिस टर्म वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय एलेक्स ऑसबर्न long back in 1960s. He was principal of New York advertising agency, and there he just gave some problem and asked people to give the ideas. तो वहाँ पे एक सज्जन ऐसे थे जो आइडियाज, जो उनकी टर्न आती थी वो आइडिया देना नहीं चाहते थे और कहते थे मैंने नहीं आइडिया देना। क्यों? जो कि आप देखिए, आप एनालाइज करके देखेंगे, वो सोचते हैं मेरा आइडिया सबसे खराब है। हम क्यों नहीं देते हैं? हम आइडिया इसलिए नहीं देते हैं, ये मेरा फ्रेंड क्या कहेगा कि मैंने ऐसा आइडिया दे दिया, इतना इम्प्रैक्टिकल, इतना अजीब सा आइडिया दिया है। द वेरी दिस थॉट हमारी क्रिएटिविटी को खत्म कर। और अगर आप इंडस्ट्री की बात पूछें तो इंडस्ट्री बड़ा मोटे अक्षरों में लिखती है क्रिएटिव पीपल, इनोवेटिव पीपल, पर हमारी ही इंस्टीट्यूशन में उस क्रिएटिविटी का को हम डेवलप नहीं करने देते। तो इस पर्सन ने क्या देखा कि जो उसकी बारी आनी वो पर्सन ने शेयर नहीं करना आइडिया। उसने ही परसुएडेड हिम, नहीं, यू हैव टू कम आउट विद द आइडिया। तो नेक्स्ट डे उसने क्या किया, बड़ी हिम्मत की, वो पेपर पे लिख के ले आया। तो सब ही वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अब ऑसबर्न जी भी अब तो आइडिया आएगा। जब उसकी टर्न आई उसने झट से पेपर पढ़ा, फेंक दिया, कहते नो आई वोंट शेयर माई आइडिया, माई आइडिया इज नॉट गुड। तो उसने कहा नहीं, आइडिया तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये कंपल्सरी है कि हर स्टूडेंट को, चाहे वो इंटेलिजेंट है, चाहे वो एवरेज है, चाहे वो पुअर है, जैसे सुनील जी अभी कह रहे थे कि हमारे पास तो सारे स्टूडेंट हैं, तो ये एक कंपल्सरी पेपर होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में कि हर एक को आइडिया देना ही देना है। तो ऐसे ही ऑसबर्न ने उसको जब परसुएड किया, उसने फिर फाइनली आइडिया दिया, एंड यू विल सरप्राइज कि हिज आइडिया वाज द मोस्ट ब्रिलियंट। तो जो एक इमोशनल ब्लॉक था वो उसको आगे नहीं आने दे रहा था। नॉट ओनली इमोशनल ब्लॉक, आइडिया देने से पहले ही वी स्टार्ट इवैल्यूएटिंग आवर आइडिया। तो यही इस मेथड का यही प्रिंसिपल है कि इवैल्यूएट जब आप आइडिया जनरेट करते हो तब नहीं करना है, क्योंकि यही चीज आपको रोक रही है। मेरा आइडिया अच्छा नहीं है, आप कहते हो नहीं देना। अगर दिमाग में मान ले आपके आ जाता कि मेरा आइडिया तो अच्छा है, फिर आपने हाथ खड़े करके कहना जी मेरा आइडिया सुनो। सो इसी प्रीमाइस पे ये ब्रेनस्टॉर्मिंग बना हुआ है। सो दिस हैज कम फ्रॉम द टर्म टू मीन यूजिंग ब्रेन टू क्रिएटिवली स्टॉर्म ए प्रॉब्लम। मंथन कर दिया ना आपने, वही वर्ड्स लिए हैं कि एक तूफान ले आओ आइडियाज का दिमाग में। इवैल्यूएट मत करो, नहीं तो तूफान को आप थमा दोगे, वो नहीं करना है। तो हम देखते हैं हम इस चीज को कैसे लेके चलते हैं। व्हेन पीपल इंटरेक्ट इन एन अनरेस्ट्रेन्ड सेटिंग दे विल जनरेट क्रिएटिव आइडियाज। अब ये अनरेस्ट्रेन्ड सेटिंग कौन सी है? इवैल्यूएट करना। ना खुद को इवैल्यूएट करो, ना आइडिया जनरेशन के वक्त दूसरे को इवैल्यूएट करने दो। तो ये इसी प्रीमाइस पे चलता है। आप देखेंगे आप अपनी क्रिएटिविटी भी इससे डेवलप कर सकते हैं। अब हर सिचुएशन में ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द प्रॉब्लम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो लेट मी आस्क फ्रॉम एनी सेंटर, आप बता सकते हैं कौन सी चीजें जो आप पढ़ाते हैं उनकी यूनिक सॉल्यूशंस हैं? हाँ जी, सिरसा से, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम सिरसा। कहाँ पे मैं कह रही हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग वहां नहीं यूज करनी है जहां पे यूनिक सॉल्यूशन है। आपके इतने थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, कहीं है ऐसा जहां पे यूनिक सॉल्यूशंस हैं? भाई जल्दी बोले, ये तो बहुत ही सिंपल बात है, प्लीज। हाँ जी सर, आप पहले भी इतना अच्छा इंटरेक्ट कर रहे थे, बताइए जल्दी, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। Not getting any idea right now. मैं कहती हूँ आप थ्योरी आप पढ़ाते हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट है?
मैम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हूँ मैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, वाह वाह, वेरी गुड। तो नाम क्या है आपका? गुरप्रीत सिंह। हाँ जी, गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह जी। आपकी सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफियों के आप देखोगे यूनिक सॉल्यूशंस ही हैं। अगर मैं कहती हूँ प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन्स तो यूनिक सॉल्यूशन है। क्या आप प्रिंसिपल बदल दोगे? क्या आप डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन बदल दोगे? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहाँ जहाँ सिंगल सॉल्यूशंस हैं वहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज नहीं होती है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होती कहाँ है यूज? देखिएगा, व्हेन द टॉपिक, और जगह नहीं होती जहाँ टॉपिक इज वेग, जहाँ पता ही ना चले कि क्या चाहते हैं। जैसे हाउ टू गेट अहेड इन लाइफ, तो मैंने लाइफ के कौन से दायरे में आप सोचना चाहती हो कि कहाँ मैंने आगे बढ़ना है, तो बड़ा वेग सा है, बहुत ब्रॉड सा है, तो पता नहीं चलता। यहाँ ऐसे टॉपिक्स पे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की जाती है। आप कहते हो अंडर रूट ऑफ मिलियन, तो वो तो फिक्स ही रहेगा, उसमें कौन सी क्रिएटिविटी आ जाएगी, तो वहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की जाती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, अगर मैं इसी चीज को लेती हूँ, हाउ टू गेट अहेड इन लाइफ, आई से हाउ टू गेट प्रोमोटेड इन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए, इसका सोल्यूशन एक कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आप सोचते हैं कि किसी मशीन का नया डिजाइन बनाना है विद दीज फीचर्स, आप सोचते हो किसी बिल्डिंग का नया डिजाइन बनाना है विद न्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, विद डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन, उसके कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं है। तो आप देखेंगे आपके ही टीचिंग सब्जेक्ट्स में कई सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पे यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होंगे। सबसे पहले उनको ढूंढो एंड देन गो फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चलती हूँ। सोल कंसर्न इज आइडिया जनरेशन एंड नॉट आइडिया इवैल्यूएशन। मैंने डिफाइन करते वक्त पहले ही बोल दिया था, नो आइडिया इवैल्यूएशन, क्योंकि जो आइडिया इवैल्यूएशन आई बेट कि मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगी ना और मैं कहूंगी आपके आइडियाज को मैं इवैल्यूएट करूंगी, या आप सोचेंगे कि मेरे दूसरे सेंटर पे आइडिया को इवैल्यूएट कर रहा है, तो आप जो अपना अच्छा आइडिया देना चाहेंगे वो नहीं दे पाएंगे। सो इस टेक्निक में भी यही चीज ली गई है। देन ग्रुप ऑफ 10 to 12 मेंबर्स आर प्रेजेंटेड विद ए प्रॉब्लम। 10-12 स्टूडेंट्स को आप बिठा सकते हैं और उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कराएं। अगर आपका क्लास साइज बहुत बड़ा है, आप एक और भी काम कर सकते हैं। आप ऐसे करें कि जैसे मान लो 50-20 लोग 40 लोग यहाँ बैठे हैं, 15 को यहाँ बिठा दें, उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग कराएं, एंड देन एट द एंड यू से ओके एनीबॉडी फ्रॉम द ग्रुप कैन आल्सो गिव द। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बताएं। हाँ, यस, माई सेल्फ सुभाष कुमार, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम ईसीबी पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। हाँ जी बताइएगा सुभाष जी। हाँ मैम, ऐसा है कि जहाँ तक बात डिजाइन एंड एनालिसिस की है, हाँ जी, इन माय व्यूज, इफ द स्टूडेंट एज वेल फैकल्टीज, हाँ जी, they have the enough knowledge regarding the MATLAB analysis, हाँ जी, MATLAB, then and each and every student should have the basic operation of the MATLAB, then simulation can be started. We can get the good result from the simulation, ठीक and है। then we can implement on the result on the hardware. So in my opinion, हाँ the जी, student as well as faculty हाँ जी, of each and every institution should हाँ have जी। the knowledge of the MATLAB, so that they can simulate their projects and then get the results, and that result should be compared with the hardware. So Very- this is the good techniques, I think. वेरी गुड, वेरी गुड। आप कोई भी तरीका निकाल सकते हैं। हर एक हो सकता है किसी डिसिप्लिन में कोई फिट हो जाता है, किसी डिसिप्लिन में कोई फिट हो जाएगा। आप अगर आपके पास सुभाष जी अगर इतने क्रिएटिव आइडियाज हैं कि आप किस तरह से उसको रियली ट्रांसफर करते हो, आई फील दैट यू शुड गो फॉर पब्लिशिंग सम पेपर ऑन दीज थिंग्स, कि किस Thank you. तरीके से आप पॉलिटेक्निक के किस तरह से मैटलैब के कंसेप्ट को यूज करके सिमुलेशन के थ्रू आप फाइनली किसी क्रिएटिव आइडिया पे, किसी नई चीज पे पहुंच सकते हैं। Thank you, ma'am. Welcome. So then group is asked to identify as many potential solutions as possible. अब ग्रुप को छुट्टी मिल गई है, अब टीचर का रोल खत्म हो गया, अब ग्रुप ने काम करना है, ग्रुप ने आइडियाज देने हैं। I will take example of this thing also. So other thing which you have to take care, group members may or may not be from the same discipline. मान लो आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों का इकट्ठा, या कंप्यूटर और आईटी दोनों ग्रुप्स को आपने इकट्ठा मिला के इस तरह का कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाना है, तो आप 3-4 स्टूडेंट्स सिविल के, 3 मैकेनिकल के, 3 इलेक्ट्रिकल के, कोई भी आप बिठा सकते हैं जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। रादर ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कहा जाता है कि अगर डिफरेंट पर डिसिप्लिन से लोग हैं, इट्स ऑल द मोर बेटर, क्योंकि वो जो दी हुई सिचुएशन है वो उसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं।
which is desired in brainstorm in any creative solution. पर जरूरी नहीं कि आप अलग डिसिप्लिन्स के लो, आपका अपनी क्लास है, यू डोंट गो फॉर दैट टू स्टार्ट विद, रादर आई वुड से कि आप अपने ही स्टूडेंट्स लेके चलें। आपके स्टूडेंट का क्लास साइज बहुत है, उसको इधर बुला के ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा दो, क्लास साइज रीजनेबल है, यू गो अहेड विद द होल क्लास, यू कैन टेक दैट डिसीजन। देन सेशंस शुड लास्ट फॉर 30 मिनट्स टू एन आवर। आप 30-35 मिनट्स 40 मिनट्स तक का सेशन ले सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग का। और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ये, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड, कि पहले कुछ टाइम में आपको आइडियाज रूटीन वाले मिलेंगे, क्रिएटिव आइडियाज नहीं आएंगे। जैसे कि हम लोग कई बार कहते हैं कि चलो ईंट का यूज क्या है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, कंस्ट्रक्शन। बात चीजें बदलते जाते हैं, इससे मंदिर बना लो, ब्रिज बना लो, एवरीथिंग, बट अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग, कंस्ट्रक्शन। अब जब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग तो खत्म नहीं हो रही है, आप कहते हो, हम कहते हैं नहीं जी और बताओ और बताओ, फिर आता है कि चलो जी हट करते हैं, अब ईंट से आप मार भी सकते हो। आई एम टेकिंग इट नेगेटिव बट टेक इट पॉजिटिव, इट इज सेल्फ डिफेंस। सो आप आइडियाज जनरेट करते हैं, पर यहाँ पर इवैल्यूएशन कोई नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन विद यू। सो रनिंग में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आप कैसे एक्चुअल क्लासरूम में करेंगे। सबसे पहले आपको स्टेजेस के बारे में बताना है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप क्या करने जा रहे हैं फाइनली। तो उसके लिए आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में आप सारी स्टेजेस के बारे में बता देंगे कि पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर थोड़ा सा आइस ब्रेकर देंगे एंड ऑल दैट। फिर इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना कंपल्सरी है। जैसे सुनील जी कह रहे थे कि हमारे कुछ लोग, आई वुड रादर से कि सुनील जी क्या सभी सोचते होंगे कि हर एक क्लास में मिक्स ग्रुप बैठे हैं, तो कई स्टूडेंट क्वाइट भी होते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं। एक्सट्रोवर्ट तो चाहेंगे मेरे से 4 सॉल्यूशन ले लो, इंट्रोवर्ट कहेगा ना ही पूछो तो अच्छा है। सो आपने, पॉइंट इज, आपने जो आपका एज टीचर रोल है, आपने सबको मोटिवेट करना है कि सबने बोलना ही बोलना है, और कोई किसी के आइडिया पे ना हंसेगा, ना किसी के आइडिया कोई इवैल्यूएट कर सकता है। सो ये फिर रूल्स अनाउंस होते हैं। तो मैं भी, क्योंकि मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन शुरू करने वाली हूँ, तो लेट मी अनाउंस फर्स्ट ऑफ ऑल द रूल्स फॉर दैट। तो रूल्स क्या है, क्रिटिसिज्म इज प्रोहिबिटेड, कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। फ्री विलिंग इज वेलकम, जो दिल में आए बोलिए। फील फ्री इन सेइंग, मत सोचो कि मैंने गलत बोला है, मत सोचो कि वो क्या कहेगा, कुछ नहीं सोचना आपने। देन क्वांटिटी इज वांटेड, जितने आइडियाज दोगे उतने अच्छा, उतनी शाबाशी मिलेगी। डेफर इवैल्यूएशन व्हाइल प्रोड्यूसिंग आइडियाज, किसी ने किसी के आइडिया को इवैल्यूएट नहीं करना, ना ही अपने को करना आइडिया को। फैंटास्टिक द आइडियाज द बेटर, जितना आपको लगे ना अनरियलिस्टिक, फनी, अनयूजुअल आइडिया, उतना ही बेहतर है। वैसे मैं बताऊं, अगर आप रियल क्लासरूम रियल स्टूडेंट्स के साथ करते हैं ना, पता नहीं उनके दिमाग उल्टे भी जाते हैं काफी, और कई बीच में नॉटी भी होते हैं, वो ज्यादा उल्टे उल्टे आइडिया से आ जाते हैं, विच इज रियली रिक्वायर्ड इन क्रिएटिव सेशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। हम जब मैच्योर हो जाते हैं तो हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हाँ कोई शरारती निकल आए तो बोल देते हैं आइडिया, मैं आती हूँ अभी, देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। फैंटास्टिक द आइडिया द बेटर। 10 hitchhike on previously expressed ideas। अब आप 4 सेंटर हैं, 5वां हमारा स्टूडियो हो गया। तो अगर मान लो सिरसा में किसी ने आइडिया दिया है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं बन जाएगा। दैट आइडिया कैन बी hitchhiked by the person sitting in Delhi और बिलासपुर और इधर। तो वो आइडियाज एक दूसरे के आइडियाज को हिचहाइक कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, मान लो सुभाष जी ने कोई आइडिया दिया, 10 मिनट के 5 मिनट के बाद उनको लगता है कि नहीं, मैं ना इसी आइडिया को ऐसे डेवलप करके बताता हूँ, तो यू कैन hitchhike your previously expressed idea, your own previously expressed ideas or the ideas given by any other person in any center। तो हम तैयार हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के लिए। लेट्स स्टार्ट द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। You have been introduced regarding this, and the second stage is the icebreaker. Icebreaker is the warm-up session. अब वार्म-अप सेशन जस्ट बहुत छोटा सा होता है। अगर आप का 30-40 मिनट्स का है तो 3-4 मिनट का आप ब्रेनस्टॉर्मिंग रख सकते हैं। हमारे पास तो बहुत टाइम कम है, मैं जस्ट 1 मिनट ही लूंगी। तो इसमें आप वार्म-अप सेशन में क्या करते हैं, जो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके बारे में कुछ नहीं करते,
आप जस्ट कोई भी चीज का सोच लेते हैं एंड आस्क देम टू डू समथिंग। चाहे आप करवा लो कि अपना नाम क्रिएटिव वे से बताओ या नए तरीके से बताओ, कुछ भी आप करवा सकते हैं आइस ब्रेकर में से। मैं कह देती हूँ, मान लो गिव मी टेल मी द यूजेस ऑफ पेन। मेरे पास पेन था तो मैंने आपको पेन के यूजेस बताने के लिए कह दिया है। आपको मैं जस्ट 1 मिनट ही दूंगी, राधा हाँ 1 मिनट देती हूँ। जस्ट थिंक ऑफ द आइडियाज एंड गो ऑन राइटिंग। कोई किसी से बात नहीं करेगा। प्लीज स्टार्ट इट, वर्क टाइम हैज स्टार्टेड। नो डिस्कशन, अपना अपना लिखिएगा प्लीज। ये सेंटर कौन सा है? हाँ जी बिलासपुर। अच्छा सुनील बैठे हैं बिलासपुर, ठीक है। तो लेट मी आस्क फर्स्ट फ्रॉम बिलासपुर। हाँ जी क्या लिखा आपने? एनीबॉडी कैन रीड इट आउट। नहीं सुनील जी, औरों को मौका दें आप। सुनील जी औरों को मौका दें आप। उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं है। यस मैम। हाँ जी मैंने कहा आप औरों को मौका दे दें। यस मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ जी गुड आफ्टरनून। माय क्वेश्चन इज हाउ टू इम्प्रूव द मेमोरी पावर एंड अलर्टनेस ऑफ द स्टूडेंट। आपको अभी क्वेश्चन नहीं पूछने का टाइम दिया, अभी तो मैंने आपको एक्सरसाइज दी हुई है कि आपने पेन के यूजेस लिखने हैं। पेन के यूजेस लिखने के लिए 1 मिनट दिया गया था आपको। आपने सुना नहीं मेरा? योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू प्रॉपर। बिलासपुर में आवाज नहीं जा रही है उनकी प्रॉपर आवाज नहीं आ रही, वैसे आ रही है बट इतना क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर आवाज नहीं आ रही। ऐसे है बिलासपुर सेंटर के लिए मैं आप दोबारा रिपीट कर रही हूँ। हम जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हम रन कर रहे हैं, इसमें दूसरी स्टेज है कि आइस ब्रेकर दिया जाता है। मैंने आइस ब्रेकर वार्म अप सेशन को लिया है कि टेल मी द यूजेस ऑफ पेन। तो इसके लिए 4-5 सेंटर्स को 1 मिनट दिया था। तो अब मेरे को उनके जवाब आने हैं क्योंकि 1 मिनट खत्म हो चुका है। अगर आपने भी लिख लिए हैं इट इज ओके, नहीं तो जब एक्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन शुरू हो जाएगा हम आपके साथ दोबारा बात करेंगे। तो लेट मी कम टू GCDM गुरप्रीत जी। हाँ जी आपका सेंटर क्या कह रहा है? हाँ जी गुरप्रीत, आपके सेंटर में क्या लिखा आप लोगों ने? Ma'am, one is very obvious, that is writing. हाँ जी Hello. हाँ जी हाँ जी। Then some ideas came like for poking someone, For poking someone like with pinch the pen or something. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। For taking revenge by throwing ink or something. ओके गुड गुड। One of my lady colleague said that for tying up hairs. For sorry? Tying up hairs, ma'am. Pinning up hair. Pinning up hair. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी ठीक है। As for itching. Okay for itching also good. Hello. For, as a clip for holding the papers and all. Good For pointing out something. Hello. very good। Hello. तो over to them। हाँ जी To hold a paper. होले पेपर गुड। तो इसका मतलब है थिंकिंग दूसरी डायरेक्शन में चली होगी, ये वार्म अप हो गया आज सिर्फ। ओके गुड। सो आई मूव टू दिल्ली देन। बीकानेर। हाँ जी वी मूव टू बीकानेर। हाँ जी सुभाष जी बताएंगे या किसी और को मौका दे देंगे? सुभाष जी
चलो मैं किसी और को देता हूँ मैडम मौका और को मैडम। दे दीजिएगा, ठीक है। हाँ, देता हूँ। आप भी बता दें, बाद में किसी और को दे दें, पहले आप बता दीजिए। हाँ हाँ, in my opinion, the utilization of the pen, yeah, utility of the pen is the first is that it show the literacy of the country also. ओके, First, और it is show the literacy of the country. हाँ Then, जी, second is it is the geniusity of the human being. ओके, Third one is the pen can be if we are using the pen, then it show also the impact on myself or my families, that how we can use the pen. ठीक है जी, How that is wastage. If I use the pen properly, then this effect can goes to my daughters, my sons, my wives also. So ठीक this है is जी, also the wastage, how we can waste, how we can utilize. This is ओके, also ठीक है another जी, one. Our colleagues, हाँ जी, Dr. Kitchers have also हाँ जी, हाँ जी, say some. हाँ जी, और दीजिए मौका, ठीक है, बढ़िया जी, जी थैंक यू सुभाष जी। भाई देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग का रूल मत तोड़िए, वहां पे कंपलसरी है, सबने बोलना है। अगर आप सब नहीं बोलेंगे तो आप अपनी क्लास में सबको कैसे बुलवाएंगे? हाँ, है? और नहीं बोलना चाह रहे हैं मैडम हमारे यहाँ से, चलो नहीं अभी, बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू। सो फर्स्ट दिस वंस दिस इज डन, एनीबॉडी फ्रॉम दिल्ली? दिल्ली, हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके, लेट मी कम टू द स्टूडियो देन। स्टूडियो से आपने कुछ सोचा फॉर शेयर करना? ओके ओके, स्टरिंग, सॉरी, ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छा, फॉर राइटिंग स्टरिंग, राइट, वेरी गुड, ओके, गुड, ठीक है, वेरी गुड, हाँ जी, प्ले भी कर सकते हैं, वेरी गुड। So point is, now you see, once you start thinking of anything, you have come up with number of ideas in your mind. तो बात है कि हम अपने ब्रेन को उस तरफ से लेके नहीं जाते हैं कि हम कुछ आइडियाज जनरेट करें। तो अब हम आ जाते हैं असली मुद्दे पे, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का है। नाउ यू आर टू डिफाइन इट। अब डिफाइन द प्रॉब्लम में, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ गेनिंग एंड रिटेनिंग अटेंशन इन द क्लास। हम पढ़ाने वालों में हैं तो हम इसी को लेके चलते हैं, मैं कोई इंजीनियरिंग या कोई टेक्निकल नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, बिलासपुर से आप जोड़िए प्लीज। हाँ जी, सॉरी, वो तब सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए। हाँ जी, बोलिएगा। मैम, हाँ जी, बिलासपुर से बिलासपुर। हाँ जी, बताइए। मैम, इफ वी आर नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन देन वी आर द प्रॉब्लम, हाउ यू कैन से मैम, प्लीज डिफाइन इट। मैं वैसे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करा रही हूँ, आप कुछ हमें सुन रहे हैं या अपना ही सोच रहे हैं? नो, यस मैम। आप हमें सुन रहे हैं? कुछ लगता नहीं है। वी आर नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपर्ली मैम। दैट इज व्हाई मैं कुछ और बोलती हूँ, आप कुछ और जवाब देते हैं। वैसे मैंने आपकी आवाज सुन ली है कि अगर हम ही प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन कहाँ से लाएं। एम आई राइट इन लिसनिंग यू? नहीं, आप मेरी बात नहीं सुन सकते हैं तो। बट वी आर अनएबल टू लिसन योर वॉइस मैम प्रॉपर्ली। हाँ, आपकी आवाज हमें आ रही है पर आपको सुनाई नहीं दे रही, इसीलिए जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका सेंटर उस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। आपको इन एनी केस पावर पॉइंट पे दिख रहा है? क्या है, पावर पॉइंट देख पा रहे हैं आप? यस मैम, यस। हाँ, तो इसमें जो डिफाइन दी प्रॉब्लम के नीचे मैंने कोई प्रॉब्लम लिखी है, उसको जरा पढ़ के बोलिए। Stages, introduction as well as icebreaker, warm up and define the problem. Problem of gaining and retaining as well as attention in the classroom. बिल्कुल ठीक है। अब इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। आप मेरे को आप सुन रहे हैं, इसके बारे में जो आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, स्टार्ट थिंकिंग। रादर मैं एक सेंटर पे जाके पूछूंगी, डोंट मीन्स राइट ऑन एनी पेपर, जस्ट टेल मी दिस आइडिया। लेट मी फर्स्ट गो टू दी अगेन, आई स्टार्ट विथ सिरसा। तब तक मैं बिलासपुर को टाइम दे रही हूँ सोचने के लिए। हाँ जी, सिरसा में। हेलो, हाँ जी, इसका कोई बताएं सोल्यूशन क्या हो सकता है? यू थिंक
थिंक एंड से एनीथिंग एनीथिंग, मत सोचो कि प्रैक्टिकल है एंड एवरीथिंग, कुछ नहीं सोचना, जस्ट बोलते जाना है। हाँ जी, थैंक यू मैम। हाँ जी बताइएगा। थैंक यू। कुछ स्टडी के साथ बीच में मतलब मे बी विद इन 15-20 मिनट्स के बाद कुछ जोक्स छोटे मोटे क्रैक किए जा सकते हैं रिलेटेड टू द स्टडीज। वेरी गुड। तो हमें गुरप्रीत जी कहते हैं जोक्स। आपके सेंटर से और भी तो कुछ होंगे, मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ 5-10 आइडियाज तो आने चाहिए आपके वहां से। सभी बोलो भाई, अदरवाइज ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं है ये। अगर आप नहीं करेंगे पूरी तरह से तो आपके स्टूडेंट जो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते, आप कैसे उनको A करवाएंगे? small story related to your topic. हाँ जी, स्टोरी टेलिंग। हाँ, story related to your topics. Related to your topic only. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। For स्टोरी। example, in our operating systems, we are using the deadlock. In this case, we to tell the story about two vehicles are running on the same track. In राइट। that case, deadlock occurs. So this type of the story we can tell the people to gain some attention. वेरी गुड वेरी गुड। और बताइए आपका नाम क्या है? Vijay Chahar. हाँ जी विजय जी, बहुत अच्छा बताया। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स फ्रॉम सिरसा? हाँ जी, एनीबॉडी एल्स फ्रॉम सिरसा? 2 ही आइडियाज आए हैं, लोग तो इतने बैठे हैं। जैसे मोनोटोनस कम हुआ जाए, अगर इन बिटवीन द लेक्चर वी शुड रेज आवर वॉइस सम टाइम, और हाँ वी जी, शुड मेक मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, वॉइस में लहरें लाओ। और give real life example, relate the study material with real life day to day examples, गिव रियल लाइफ एग्जांपल्स। वेरी गुड। like actually ma'am, I am teaching intelligence systems. हाँ जी। Like the case of probability, I uh, I told the student that go to doctor when the doctor diagnose your problem. मतलब जब तक डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं कर देता तो आपके पास प्रूफ ही नहीं होता कि वाकई में आपको वो चीज है या नहीं है। तो ये केस होगा मैम प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना, कि वो चीज हो सकती है नहीं हो सकती। तो आप मतलब रियल लाइफ के साथ अगर स्टडी को रिलेट करेंगे तो बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उनकी अटेंशन भी रहेगी डे टू डे एक्टिविटीज। नाम क्या है आपका? मैम एकता। एकता, बहुत अच्छा बताया आपने। चलो हम अगले आप सेंटर पे चलते हैं, बीकानेर। हाँ जी, बीकानेर में। हाँ, गुड आफ्टरनून मैडम। हाँ जी, सुभाष जी बोलेंगे, ठीक है जी। The problem, we can define the problem in such a manner that we can get the exact solutions. We can get Exact solution, or we can say the precise solutions. That is also problem. नहीं, मैं कह रही हूँ प्रॉब्लम ऑफ गेनिंग एंड रिटेनिंग अटेंशन इन द क्लासरूम, इसके ऊपर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। तो ये आप किस तरह से कर सकते हो कि स्टूडेंट, आप तो पढ़ाते हैं, तो क्या गेन स्टूडेंट की अटेंशन गेन करना और रिटेन करना, ये किस तरह से हो सकता है? क्योंकि अगर स्टूडेंट आपको अटेंड ही नहीं करेगा तो रिटेंशन की तो बात ही खत्म हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके ऊपर है ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप थोड़ा सोचिए, हम फिर अगले सेंटर पे चलते हैं। एनीबॉडी फ्रॉम दिल्ली? हाँ जी, दिल्ली से। ओके, बिलासपुर। बिलासपुर, आप लोगों ने मेरी प्रॉब्लम सुन ली थी? नहीं, दिल्ली से। हाँ जी, दिल्ली। let us go to the center at बिलासपुर। दिल्ली वाले हमको सुन रहे हैं? लेट्स गो टू द। हाँ जी, आप में से कोई सोल्यूशन बताना चाहेगा दिल्ली में? नहीं, ओके, बोल सकते, कोई रेट नहीं कर रहा है। हाँ जी, फ्रॉम सेंटर एट दिल्ली, हैव यू थॉट ऑफ एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम व्हिच आई हैव शोन? हाँ जी, सेंटर फ्रॉम दिल्ली, हाँ जी, नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली। आर यू एबल टू हियर मी? कोई रिस्पांस नहीं है, कोई एक्सप्रेशंस नहीं है वहाँ। ओके, आई मूव टू बिलासपुर। हाँ जी, सुनील जी, आई थिंक वी हैव मेड द डिस्कशन। तो आप मुझे सुन पा रहे हैं?
आप मुझे प्लीज कोई इसका सोल्यूशन बताएंगे आप? इसके बारे में वेरी गुड। आप कहती हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाएं और इंट्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, वेरी गुड। और हाँ जी हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। प्रदीप जी ने कहा कि बोर्ड पे ले आए जिससे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो हम लेके चले थे वो बढ़ जाए। ठीक है जी। जोक्स का हो गया, जोक्स तो काफी बहुत सही कह रही है, उन पे मत करो, ऐसे शुरू करने चाहिए। दैट ब्रिंग सम चेंज इन दी क्लासरूम। तो जोक्स हो गए। और हाँ जी, बिलासपुर से कुछ कहना चाहेंगे? कुछ सोचा और आपने? नहीं। अरे भाई आप तो पढ़ाते हैं एंड सम ऑफ यू लुक टू बी एक्सपीरियंस्ड आल्सो, तो कुछ तो आप कोशिश करते होंगे कि स्टूडेंट की अटेंशन बनी रहे। हाँ जी, एनीबॉडी? हाँ जी, मैडम ऑन द फर्स्ट रो। हेलो। हाँ जी, कौन से सेंटर से आइए? ओके, so I have come up with the ideas, jokes, stories, changing pitch, give real life examples, board पे ले आए, activities बना लें, groups बना लें, like that. Now, Hello. once the students have given the ideas. Hello. हाँ जी। Hello. हाँ जी, बीकानेर से। हाँ जी, प्लीज। हाँ। बताइए जी। Madam, if we call the student by their name, not by their roll number. Very good. So that we can develop the faith in the students. Very and good. student get the faith also to the faculty also. बिल्कुल So ठीक। my idea is to be make the interrelationship between student and teacher in a good way. बहुत So अच्छा that student can put their problems. ठीक है, And बहुत second अच्छा। idea is we can solve the problem from the student if we are take the more tutorial classes. More tutorial classes. More tutorial classes. Tutorial classes, ठीक है जी। तो थैंक यू सुभाषी। एनीबॉडी एल्स फ्रॉम बीकानेर? ओके, अब ये जो आइडियाज जनरेट हुए हैं आपके 15-20 स्टूडेंट सबको, आपने जब आधा घंटा ये सेशंस चलता रहा, तो जो आइडियाज आपके पास काफी जनरेट हो गए, वो आप जरूरी नहीं कि फ्लिप चार्ट लगाए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बताइएगा। हाँ मैम, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी बताइए। हाँ मैम, इफ वी कॉल द स्टूडेंट ऑन बोर्ड देन इट इज आल्सो अ वेरी गुड मेथड फॉर टीचिंग। बहुत ही अच्छा कहा। ये हमारे स्टूडियो में प्रदीप जी ने भी ये आइडिया दिया है, बहुत अच्छा आइडिया दिया दोनों ने, बहुत अच्छा। और कुछ आइडिया देना चाहेंगे आप? ओके, जब ये आपका, थैंक यू, आई डोंट नो योर नेम। सुभाष जी, आप अपने कुलीग का थैंक्स कर दें, मुझे नाम नहीं मालूम है। तो हेलो मैडम। हाँ जी। उनका नाम श्याम सुंदर सुथार। हाँ जी, श्याम सुंदर जी, वेरी आपका थैंक्स कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में पार्टिसिपेट किया। अब देखिए, आइडियाज जनरेट जब हो रहे हैं, साथ के साथ वो बोर्ड पे लिखते चले जाएंगे, बिना किसी इवैल्यूएशन के, बिना किसी कमेंट के। अगर मैं जो कह रही हूँ ना, वेरी गुड, इतना भी नहीं कहने की जरूरत है, आप जस्ट आइडियाज लिखते चले जाएंगे। उसके बाद क्या किया जाता है? सिलेक्ट वन फोकस स्टेटमेंट। अब वो कैसे सिलेक्ट करनी है? सिलेक्ट आइडिया योरसेल्फ और आस्क स्टूडेंट्स टू सिलेक्ट 4-5 आइडियाज। अब आप अपने स्टूडेंट्स को कहें कि इसमें से 4-5। अब स्टूडेंट्स तो शरारती होते ही हैं, वो देखेंगे कि जो सबसे इम्प्रैक्टिकल आइडिया, पहले तो इम्प्रैक्टिकल आइडिया देंगे और फिर कहेंगे इसी को सिलेक्ट कर लो। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग कि हमने इम्प्रैक्टिकल लिया है या कोई किस तरह का लिया। जैसे मैं अभी इसी केस की एग्जांपल देती हूँ।
आपने देखा होगा, आपने अपने कई टीचर्स ऑब्जर्व किए होंगे जो एक जगह खड़े हो जाते हैं बिना हिले, एक ही सांस में सारा लेक्चर पढ़ा जाते हैं, एक बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं रखते हैं, राइट। तो अगर मैं आप में से कोई शरारती स्टूडेंट सोचता कि टीचर शुड डांस इन द क्लास, कैन द टीचर, मैं उसको, और वोटिंग उसी के लिए हो जाती कि टीचर शुड डांस इन द क्लास, तो क्या टीचर डांस करेगा? कोई नहीं करेगा। अब जो आपने 4-5 आइडियाज लिए उसको हमने प्रैक्टिकल करना है। आपने कहा जोक सुना दूं, आपने ऐसी 3-4 स्टेटमेंट जो आपको बहुत इम्प्रैक्टिकल लगती है कि नहीं ये तो होनी नहीं चाहिए है, जैसे जोक्स कह दिया, स्टोरी टेलिंग कह दिया, ठीक है, मैंने कह दिया डांस कर लो, तो ये जो चीज़ें हैं आपको लगा कि ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, तो ऐसे आइडियाज़ को निकाल लिया जाता है, बट ऑफ कोर्स ऑन वोटिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स, देन दीज आइडियाज़ आर राइट। कई बार तो होता है कि जो सबसे इम्प्रैक्टिकल आइडिया लगता है उसी को ही सिलेक्ट कर लिया जाता है। देन यू डू दी इवैल्यूएशन, जो हमने छोड़ दी थी ना इवैल्यूएशन, वो अब होगी। अब आपने कहा टीचर शुड कट जोक्स इन दी क्लास, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब आप इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी देखो कि क्या वाकई ही टीचर्स जोक्स कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं, किस टाइम पे करने चाहिए, ये आप चीज़ें आगे लाएं। आप स्टोरी टेलिंग कहते हो, स्टोरी टेलिंग आप रिलेट करके किस तरह से करते हो, आप एनालॉजी अगर देते हो किसी सब्जेक्ट की रियल लाइफ में तो एनालॉजी किस तरह से देते हो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको रिलेट करने में इंटरेस्टिंग। अब मैंने कह दिया था डांस करो, अब कौन कहता है कि डांस करे टीचर? कौन मानता है मेरी बात? बताओ। मैं अब इवैल्यूएशन कर रही हूँ अपने आइडिया की, कैन टीचर डांस इन द क्लास? हाँ जी, किसी सेंटर से मैंने भी एक आइडिया दे दिया, इट लुक टू बी डेफ्टेस्ट आइडिया, कैन आई मेक इट प्रैक्टिकल? हाँ जी, नहीं कर सकते हैं। प्रदीप जी ने तो मना कर दिया, दीप्ति ने भी मना कर दिया सेंटर पे, तो लेट मी लिसन फ्रॉम सेंटर्स, पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अदर सेंटर्स। हाँ जी, लेट मी अगेन स्टार्ट फ्रॉम सिरसा। No, ma'am. We think it will not be possible to dance in the It will not be possible to dance. Okay. और सोचो किसी और सेंटर से, बीकानेर वाले क्या कहते हैं भाई? हाँ जी, बीकानेर क्या कहते हैं? डांस कर सकते हैं? जोक तो मैं मान लेती हूँ कर सकता है। नहीं डांस तो, हेलो मैडम, हाँ जी, डांस तो कर सकता है। वेरी गुड, वेरी डांस तो गुड। कर सुभाष सकता जी है, हैं मेरे डांस मेरे साथ वोट देने में, ठीक है। Yes, हाँ डांस जी, कर सकता है, कर सकते हैं। बस कैसे? उसका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो सारे सारा टाइम डांस कर, आवर में ही वो डांस करे, ऐसा नहीं। हाँ, पर मतलब शुरू के 5 मिनट डांस कर ले, हाँ हो सकता है। चलेगा? चलेगा। आप जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाने वाले हैं, हाँ जी, आई एम इमेजिनिंग हाँ जी कि पहले 5 मिनट। मैम, मैं तो क्लास में जब पढ़ाता हूँ ना तो हाँ जी। आप देखेंगे मैं हमेशा बोर्ड पे कम रहता हूँ, बच्चों के अंदर ज्यादा रहता हूँ। मैं 40 मिनट बच्चों के अंदर रहता हूँ और जब मैं मूव करता हूँ तो ऐसा लगता है कि डांस ही हो रहा होगा। बहुत सही कहा आपने, डांस का मतलब लिटरल डांसिंग नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी दैट द आंसर हैज कम। आप अपने एक्सप्रेशन को चेंज कीजिए, आप अपने मूवमेंट को चेंज कीजिए, इट आल्सो पार्ट ऑफ द डांस। बहुत सही कहा। जो टीचर्स एक ही जगह पे खड़े होके पढ़ाते रहते हैं वो कई बार इतने इफेक्टिव नहीं रहते। आप मूव करो क्लास में, सारी क्लास आपकी है, सारे स्टूडेंट्स आपके हैं, बी विद दैट फॉर सम टाइम। कभी यहाँ पर आ जाओ, कभी जेस्चर से समझाओ, ये नहीं कि बस एक जगह खड़े हुए लेक्चर के लिए और वहीं खड़े रह गए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आप और आइडियाज जैसे जोक्स का ले लिया, तो जोक्स कहाँ पे किस तरह से सुनाए जाने हैं, किसी पे नहीं सुनाए जाने, इस चीज़ को भी आप आगे इलैबोरेट कर सकते हो। सो ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हैं, इसको जब इवैल्यूएशन करते हो तो जनरली एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि मान लो आपने कोई डिज़ाइन बनाया तो उसमें कॉस्ट लगेगी। आप तो सोचो कि बड़ा क्या कहते हैं, परियों के देश में चले जाओ और सोचो कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो जब उसको रियलिटी में डालना है, वो तो आपने डिज़ाइन बना लिया जब ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही थी, पर जब उसको रियलिटी में टेस्ट करना है तो देखो कि कॉस्ट क्या है, इंस्टीट्यूशन का रिसोर्सेज क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, टाइम क्या होंगे। अगर यही चीज़ें आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग से पहले सोचते तो आप कुछ भी ना करते, सिर्फ यही हर आइडिया को जन्म देते और मार देते, आइडिया को जन्म देते और मार देते, क्योंकि आप हर बार कह देते थे कि ये आइडिया पॉसिबल नहीं है। पर जब आपने खुली छूट दे दी, कई तरह के आइडियाज आए, फिर आपने कोई क्राइटेरिया बना के उनमें से निकाले और उसको इवैल्यूएशन शुरू की, तो आपने कई इम्प्रैक्टिकल आइडियाज को भी प्रैक्टिकल बना दिया, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दी थ्रू दी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। और
कि बच्चों की आप क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स है। तो मैं इसकी फिर एडवांटेजेस ऐसे मेथड के हैं दैट इट एनकरेजेस क्रिएटिविटी, रिफ्रेशिंग चेंज ऑफ मेथड। बच्चे को, मैंने कहा ना, स्टूडेंट को जितना बोलने का मौका मिलेगा और जब आप खुली छूट दे देंगे थिंकिंग की, तो वो उस चीज़ को रियली एंजॉय करता है। तो एंजॉय भी करता है और साथ में क्रिएटिविटी आप डेवलप भी करते हो, ये नहीं कि इट्स जस्ट एंजॉयमेंट। रीइंफोर्सेस सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। हमने कहा ब्रेनस्टॉर्मिंग है, हर एक को बोलना ज़रूरी है, ठीक है। अब जब आप कंपल्सरी कर लेते हो, 12 का ग्रुप करते हो, आप उसको, आप एज फैसिलिटेटर वहाँ पे होते हो, देखते हो कि सब लोग पार्टिसिपेट करें। एक पहली बार अगर कोई इंट्रोवर्ट या शाय बच्चा एक छोटा सा आइडिया आधी लाइन में बोलता है, तो उसका क्या हुआ, एक बार सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ी। जब अगली बार ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ कुछ देर के बाद, या आपने क्लास में क्वेश्चन पूछा, तो वो जो एक जागरूकता, एक इच्छा पैदा हुई थी, उसको और आप बढ़ावा देंगे। तो इसी तरीके से धीरे से उसकी और एबिलिटीज भी डेवलप होंगी। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी। देन देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस। मैं उसको डिसएडवांटेज नहीं कहती हूँ, इट्स नॉट ए वेरी सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडिंग, इसमें कोई शक नहीं है। पर जहाँ पर आप, हम कहते हैं ना, डॉक्टर तुलसी ने सुबह ही लिया होगा कि सबसे कॉग्निटिव डोमेन में लोएस्ट लेवल क्या था, रिमेम्बरिंग, वेरी गुड, टू रिमेम्बर इट, अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड, अप्लाइंग, evaluating एंड फाइनली क्रिएटिंग। तो ये क्रिएटिंग जो है ना, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग से। तो जो अगर आपका सिलेबस में इतना स्कोप है कि आप क्रिएटिंग तक पहुंच रहे हैं, जो कि डिज़ाइन वाले सब्जेक्ट्स में होता है, जो कि मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स में आ जाता है, जो कि जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह के हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स में आता है, तो आप स्टूडेंट को वाकई ही उस लेवल तक लेके जाएंगे। देन समटाइम्स टू मेनी डार्क सजेशंस आते हैं। अगर आप मान लो, जैसे मैंने कह दिया डांस, और ऐसे ही 4-5 और ऐसे होते, तो कई बार टीचर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट आई फील कि एक बार आपको एक्सपोजर मिल जाए, तो आपका भी वो क्रिएटिविटी वैसे ही बढ़ती जाती है टू हैंडल सच टाइप ऑफ suggestions. So I don't call them exactly the disadvantages, but of course we have this restriction is a little bit restriction is. So this was all about the brainstorming session. Then we come to the last method, which of the lecture, and that is the collaborative method. Let me just hear from you what you understand by this collaborative. Literal meaning से चाहे चलिएगा। हाँ जी, collaborative। अच्छा, हाँ जी, collaborative का क्या मीनिंग होता है? collaborative, कोलैबोरेट कैसे करते हैं? मैम, हाँ जी, collaborating means adding to different ideas. adding to different ideas, okay, a step towards that, okay. हाँ जी, गुरप्रीत जी। हाँ जी मैम, Hello. हाँ जी मैम, ये मैंने Hello. कहा था अभी, collaborative means adding to different ideas. Hello. Hello. From the idea that learning is a social act. आप जरा मुझे सब सोच के बताएं, जब आप स्टूडेंट थे तो कितना टाइम आपको दिल करता था कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठ, जब एग्जाम पास होते थे आप क्या करते थे? पढ़ते थे फ्रेंड्स के साथ कि नहीं? पक्का सच बता दो, कितने लोग? जस्ट रेज योर हैंड। मैं बीकानेर वालों के सामने देख रही हूँ, तो बीकानेर सेंटर से, हाँ, 2-3। Okay, so some participants here are also saying that they wish to learn in groups. तो ये जो एक हमारा ये एक सोशल ह्यूमन बिहेवियर है। सो आप देखो, बच्चा जो चीज़ पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकता वो अपने पीयर से कर लेता है, जो क्वेश्चन टीचर से नहीं पूछ सकता वो पीयर से पूछ लेता है। तो यही आइडिया लेके ये कोलैबोरेटिव लर्निंग का कंसेप्ट है। अब इसमें क्योंकि आप नहीं पढ़ा रहे हो इतना जितना वो आपस में पढ़ रहे हैं, सो दिस इज ए टाइप ऑफ एक्टिव लर्निंग। तो स्टूडेंट्स की टीम्स बना दी जाती हैं, बजाय कि स्टूडेंट
क्लास से बाहर जाकर ये सब कुछ करे। आप कहते हो मेरी क्लास में ही पीयरिंग कर लो और पीयर करके आप पढ़ो आपस में। You give them the chance to have those type of discussions. Say it can be पहले तो फेस टू फेस ही होती थी, अब ये ऑनलाइन भी चलती है। आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर सब कुछ आ चुका है थ्रू विच स्टूडेंट्स गो फॉर ऑनलाइन आल्सो। हाँ, ड्यूरिंग लेक्चर्स मैं तो कह रही हूँ यहाँ फेस टू फेस है, यहाँ बिठा दें, मैं अभी करवा के दिखाऊंगी आपको। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी, आप आप करवा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। गुड, बिल्कुल बहुत सही कहा। और यही आइडिया लेके कोलैबोरेटिव लर्निंग बनी, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आइडिया लेके। सो दिस इन्वॉल्व्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स वर्किंग टुगेदर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, कंप्लीट ए टास्क और क्रिएट ए प्रोडक्ट। मैं अपना ही केस बताती हूँ। वी वर इन एमएड, आई वाज थिंकिंग कि ये छोटे बच्चों का काम होता है। वी वर डूइंग, आई हैव डन एमएससी केमिस्ट्री एंड देन डॉक्टरेट इन एजुकेशन। तो जब हम एमएड में पढ़ते थे, वी वर हैविंग ए पेपर ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, वहाँ पे स्टेटिस्टिक्स का काफ़ी होता है। तो इतनी हमें क्लास में पता नहीं चलती थी जितनी हम क्लास से बाहर लेके सॉल्व एग्जाम्पल का पोस्टमार्टम करते थे आपस में बैठ के, तो वो कंसेप्ट क्लियर हो जाते थे। तो जो चीज़ एक दूसरे को नहीं पता चलती थी वो एक दूसरे से बात करके समझ आ जाती थी। नाउ दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट दे हैव ब्रॉट इन द हायर एजुकेशन आल्सो। इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ये फेस टू फेस डायरेक्ट भी चल रहे हैं। हम अगर ऑनलाइन नहीं जाते, हम फेस टू फेस इवन अपनी क्लासरूम में करा सकते हैं। लेट अस सी हाउ वी गो। सो कोलैबोरेटिव लर्निंग, आई थिंक द स्टूडेंट्स डिस्कवर यूज इंफॉर्मेशन इन ए कोलैबोरेटिव मैनर। चाहे वो डिस्कवर करवानी है, चाहे आपने आपको वो कंसेप्ट्स दिए हुए हैं, डिस्कवर नहीं करना, दिए हुए हैं कंसेप्ट्स, तो वो उन्होंने आपस में, जैसे प्रदीप जी ने अभी बताया, वो आपस में डिस्कस करके आपस में आपस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे। सो स्टूडेंट्स एनालिसिस जनरली रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन। कोई डाटा दिया है उसका इंटरप्रेट करना, असेस करना, इवेलुएट करना, किसी चीज़ को कंपेयर करना, आप कुछ भी करवा सकते हैं इस कोलैबोरेटिव में। हायर स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, इसमें आप देखेंगे मैं कुछ मेथड्स इसके डिस्कस करूंगी, नॉट ऑल बट फ्यू सम ऑफ देम। तो इसमें स्टूडेंट टीचर जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इंक्रीजेज फीडबैक, एकदम से एक दूसरे से डिस्कस करके पता चलता है कि ओहो यहाँ गलती हो गई थी, तो टीचर को भी एकदम पता चलता है, तो टीचर स्टूडेंट्स को एकदम से फीडबैक दे पाता है। अदरवाइज कोई टेस्टिंग हो तभी पता चलता है कि स्टूडेंट्स आपके कहाँ पे हैं। लिंक्स न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज, जब भी स्टूडेंट, अगर जैसे प्रदीप जी ने कहा कि दो इकट्ठे बैठ के आपस में डिस्कस करते हैं, तो जब आपस में स्टूडेंट करते हैं तो क्या करते हैं, तुझे ये चीज़ तो पता है ना, आगे ऐसे करना है, बस आप तुम ऐसे समझ लो। तो जब वो ऐसी बात करते हैं, वैसे तो हम कहते हैं कि टीचर लेक्चर में भी ऐसे करे, पर जब वो स्टूडेंट अपने एक दूसरे के साथ करते हैं तो वो जो, क्योंकि सेम लेवल पे होते हैं, तो थोड़ा कुछ पूछना, जैसे मैंने कहा ना ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या था, मेरा आइडिया अच्छा नहीं है, मैंने शेयर कर दिया। पर जब वो अपने पेयर में 2-3 के साथ बैठे होते हैं तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, शेयर कर लेते हैं। तो इसी से ही एक तो सोशलाइजेशन बढ़ती है, कम्युनिकेट करते हैं और थिंकिंग पावर भी उससे बढ़ जाती है। देन यूटिलाइजेस रिसोर्सेज बेटर, जितने भी रिसोर्सेज हैं, आपने एक असाइनमेंट, एक क्वेश्चन का वो दिया, चारों को कहा कि चलो आप बैठो इस पे करो, तो रिसोर्सेज की अच्छी यूटिलाइजेशन होती है। टीचर का काम, मेंटर का काम, रिमेंबर टीचर का काम खत्म नहीं हुआ, टीचर का काम और भी चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि जब आप कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए कोई टॉपिक देते हो स्टूडेंट को, स्टूडेंट तो आजकल नेट पे सब कुछ पढ़ा है, वो तो सारा मसाला लेके आ जाएगा और फिर आपसे पूछेगा कि ये बताओ। सो टीचर को और भी ज़्यादा, दैट्स वाई इट्स राइटिंग टीचर ऐसे को लर्नर, कई चीज़ें टीचर को भी नहीं पता होंगी, तो टीचर को भी उसके साथ पता चलेंगी। देन इट्स ए जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड ओनरशिप, क्योंकि स्टूडेंट कहता है मैं लाया था ये, उसका जो वो है ओनरशिप उसकी बढ़ा देता है। इंस्टिल्स मोर रिस्क टेकिंग, छोटा ग्रुप बनता है, थोड़ी सी रिस्क लेता है, चलो गलत बोल दिया कोई बात नहीं, अगली बार देखूंगा, तो वो जो रिस्क टेकिंग है वो बढ़ते बढ़ते उसकी रिस्क टेकिंग भी थोड़ी डेवलप हो जाती है। फैसिलिटेट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आपको छोटे ग्रुप में प्रॉब्लम होती है, आप बोलते हो, सोचते हो, सॉल्व करते हो, सो इट इंक्रीजेस, फैसिलिटेट्स दैट आल्सो। अब टीचर का क्या रोल है, टीचर ने पढ़ाना नहीं है, आप एक तो सेशंस रखें, ये नहीं कि रोज ही कोलैबोरेटिव शुरू कर दें, तो टीचर एक्ट्स मोर एज एन ऑर्गेनाइजर, उसे ऑर्गेनाइज करनी है, ग्रुप बनाने हैं, जहाँ किसी को मुश्किल आ रही है तो ही इज फैसिलिटेटिंग कि कहीं स्टूडेंट स्टक अप ना हो जाए, ही इज मीडिएटर,
ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, जहाँ स्टूडेंट को बिल्कुल मटेरियल नहीं मिला तो टीचर को कुछ हेल्प करनी है कि कहाँ से मिलेगा, भी ऐसे कर लो, सर्च इंजन में कीवर्ड ये डालोगे तो ऐसे आ जाएंगी चीजें, तो ऐसे में टीचर को हेल्प भी करनी है। पर वो फाइनल फॉर्म में पकी पकाई मटेरियल नहीं दे रहा है स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट भी कर रहा है, तो ये थोड़ा सा चीजें चेंज हो गई हैं। एक्ट एज ए टाइम कीपर, ये नहीं कि कोलैबोरेटिव लर्निंग में डिस्कस ही करते जा रहे हैं, आगे चलते ही नहीं है। रिसॉल्व प्रॉब्लम्स, अगर कोई आपस में कोई झगड़ा कोई कुछ भी हो जाता है, देन ही रिसॉल्व, आपस में मतलब कोई प्रॉब्लम आपने ऐसी दे दी जिसका फिक्स सोल्यूशन नहीं है, तो दो स्टूडेंट्स आपस में डिफर करते हैं, तो वहां पे टीचर को इंटरवीन करना पड़ता है। हेल्प्स इन आंसरिंग क्वेश्चंस इफ प्रेजेंटर इज नॉट एबल टू, बाद में जब आप कोलैबोरेटिव लर्निंग के बाद प्रेजेंटेशंस करवाते हैं, और अगर प्रेजेंटर को, क्योंकि आपका स्टूडेंट का एक्सपोजर तो उतना नहीं है जितना टीचर का है, तो जहाँ पे भी गैप्स होते हैं वो टीचर उसको ठीक करता है। पीयर लीडर ट्रेनिंग में छोड़ देती। अब इंस्ट्रक्शनल एग्जांपल्स पे मैं जंप करती हूँ। पहली है थिंक पेयर शेयर। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें इंस्ट्रक्टर पोजेस ए क्वेश्चन, सो प्रेफरेबली दैट डिमांडिंग एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, कुछ भी हो सकता है आपने जो सुबह पढ़े हैं, और स्टूडेंट को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है कि इसको कहते हैं थिंक टाइम। स्टूडेंट मन में कुछ उसका जवाब सोचता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले सेशन को थिंक पेयर में ले आती हूँ, मैंने कहा कि आप या जैसे आप कोई भी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ले लें कि किसी सोल्यूशन में किसी उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी थ्योरी लगेगी, कोई सिचुएशन है, तो आप वो सिचुएशन स्टूडेंट्स को दे देते हो और उनको कहते हो सोचो। सभी इंडिपेंडेंटली सोच रहे हैं, आपने उनको थिंक टाइम दिया। उसके बाद ये क्या करें, जो वर्ड्स कह रहे हैं उसी पे चलेंगे। जब उन्होंने थिंक कर लिया, हम कहते हैं नाउ बी इन पेयर्स। जैसे आपके फर्स्ट रो में स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वो आपस में पेयर बन गए, हर एक दूसरे से आप डिस्कस करेगा। अच्छा मैंने तो सोल्यूशन ये सोचा था, तुमने क्या सोचा? अच्छा ये सोचा, अच्छा ये भी पॉसिबल है। तो दे स्टार्टेड डिस्कसिंग विद ईच अदर। जब आपस में दोनों ने डिस्कस कर लिया, फिर उनके पिछली रो पे भी, आपके भी तो जैसे सेंटर्स में पिछली रो पे भी लोग बैठे हैं, तो फिर वो 4 का ग्रुप बना सकते हैं। तो ये जो ग्रुप है वो एक्सपेंड होता जाता है, थिंक पेयर शेयर, इस तरह से ये एक्सपेंड होता जाता है। स्टूडेंट्स देन टर्न टू ए पार्टनर एंड शेयर देयर रिस्पॉन्सेज। आपस में डिस्कस किया, फिर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज कैन बी शेयर्ड विद इन 4 पर्सन्स। छोटी टीम्स बन गई अब। तो आपने इंडिविजुअल थिंकिंग टाइम दिया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ा दी, ठीक है। होंगे कई लोग कई बार कहते हैं जी टीचर स्टूडेंट सोचते नहीं है, सो व्हाट। अगर आपके मान लो 20% स्टूडेंट्स ने भी सोचना शुरू कर दिया, जब अगला बार कोलैबोरेटिव लर्निंग का सेशन आएगा, हो सकता है 20 के 25 हो जाएं, फिर 30 हो जाएं। तो एक बार फिर ये आपने एक्चुअली ये बीमारी फैलानी है कि सोचो अपने आप में, फिर उसके पेयर बना देते हैं। वो कहते हैं अब उसको ऐसे नहीं लगेगा कि एकदम लंबा सा लेक्चर चल रहा है, उसको लगेगा अच्छा अब इससे शेयर करते हैं। होंगे कई स्टूडेंट्स ऐसे जो कहेंगे ये इसको सोचने दो, मैंने क्या सोचना, ये सोच ले फिर मैं बात करूंगा, डजंट मैटर, पॉइंट इज यू आर गिविंग द चांस, ठीक। फिर पेयर में आफ्टर खुद नहीं सोचा तो दूसरे का सुनेगा तो सही। अब दोनों में डिस्कस किया, अब 4 का ग्रुप बना दिया, चारों में से 3 ही तो 2 ने तो सोचा होगा ना, वो 2 बोलेंगे, तो वो जो थिंकिंग है इतने टाइम में क्या होगा, जो 2 नहीं भी सोच रहे थे वो भी कुछ सोचना शुरू कर देंगे। तो ये चीज एक्सपेंड होती है। This has been so all students have an opportunity to learn by reflection and by verbalization. तो जितने भी सोच लेते हैं वो आपस में पेयर में। अब टीचर का क्या काम है, मेंटर है, टीचर ने देखना है कि सारे पेयर्स में क्या क्या बातें हो रही हैं, ठीक। उसने कोई अपने कमेंट्स नहीं देने, देखना है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और क्या हो रहा है काम। ये ऐसा कुछ हो जाए जैसे कि पहले इंडिविजुअली सोचा, फिर पेयर बन गया, फिर बड़ा ग्रुप हो गया, फिर आप इस बड़े ग्रुप में एक को बुला के प्रेजेंटेशन करवा लो। तो स्टूडेंट को एक चेंज ऑफ मेथड लगता है, तो इंटरेस्ट सब्जेक्ट में नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि देखो टू बिगिन विद आप
सेमेस्टर में 2 बार करवा लो, ठीक है, 2 बार 3 बार। और वो भी आप जो जिक्सा मेथड का बताऊंगी ना, ये है आप देखिए इंटरेस्टिंग है वो बहुत। और भी उसमें आप टॉपिक ही बांट देते। आपने मान लो 3 लेक्चर लेने थे किसी को पढ़ाने के लिए, किसी सब्जेक्ट किसी टॉपिक को, अब बहुत है आपके 4 लग जाएंगे, बट यू विल सी कि आपका कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं रहेगा जिसको समझ नहीं आई। वो है दिस मेथड इज जिग्सा मेथड। अब जिग्सा मेथड में क्या करते हैं, द टीचर डिवाइड्स एन असाइनमेंट और टॉपिक इनटू 4 पार्ट्स, 4 5 जितना आपको ठीक लगता है, विद ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच लर्निंग टाइम वॉलंटियरिंग टू बिकम एक्सपर्ट्स ऑन वन ऑफ द पार्ट्स। आपने मान लो मैं लेती हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन्स का, डीसी मशीन्स है, उसका पहला पोर्शन मान लो आपका भी इलेक्ट्रिकल है ना, नहीं ठीक है नहीं, मैकेनिकल है, आप मैकेनिकल का ले लो, मान लो आप थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट ले लो, ठीक है, आप फर्स्ट लॉ ले लिया, उसके आगे एनर्जी इक्वेशन डायग्राम्स क्या होती हैं, लॉ का प्रिंसिपल क्या है, उसको 3-4 पार्ट्स में, सेकंड लॉ क्या है, ठीक है, उसकी डेरिवेशंस, एग्जांपल्स, एंट्रोपी, ये सारा कुछ आपने बांट दिया। उस लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को 5 पार्ट्स में बांट दिया। अब आपके पास आप 5 टीम्स बना लेते हो, पांचों टीम्स में आप देख लो कि जिस तरह के आपके स्टूडेंट्स हैं, मतलब जितने टॉपिक्स हैं उतने उतने एक ग्रुप में लोग होने चाहिए, उनको बांट दो। अब पहली टीम को कहो कि आपका ये टॉपिक, दूसरे का ये। अब हर टीम में से एक एक पर्सन को बुला लो। 5 टीम थी, 5 टीम में से मान लो 5 में 5-5 लोग हैं, आपने 5-5 का एक नया ग्रुप लिया, उसको कहा भी तुम प्रिंसिपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जस्ट जो डेफिनेशन और मीनिंग, इसको तुमने अच्छी तरह से समझना है 5 लोगों में। और चाहे उसके लिए आप नेट कंसल्ट करो, आपके पास कोई रेडीमेड रीडिंग मटेरियल है आप वो दे दो उनको को। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप सब इसको ऐसे समझ लो कि अपने ग्रुप में वापस जाओगे तो वो टॉपिक आप अपने ग्रुप को अच्छी तरह से समझाओगे कि सबको समझ आ जाए, ठीक है। दूसरे ग्रुप में से भी एक और टीम बना ले, सभी में से एक, इसको कह रहे हैं एक्सपर्ट्स हैं, ये उस पोर्शन के एक्सपर्ट्स बन रहे हैं। उसको किया आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे दिया, उसको कहा भी आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इतना पोर्शन तुमने करना है, वो टीम तैयार होगी, वो कहती आप उसको क्लास में भी जाएंगे। तीसरी टीम को आप कहते हो कि आपने सेकंड उसका रेस्ट ऑफ द पोर्शन करना है। इस तरीके आपने 5 टीम्स जो एक्सपर्ट टीम्स का से मेंबर्स बुला के 5 एक्सपर्ट टीम्स बन गई, और 5 एक्सपर्ट टीम्स के पास क्या है, अलग अलग टॉपिक्स हैं, और सारे आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये कंटेंट का मीनिंग क्या है, और अगर किसी को समझाना है तो किस तरह की एग्जांपल्स देके समझाया जाए। ये उन्होंने कर लिया। अब जब ये उन्होंने कर लिया, एक्सपर्ट टीम्स देन वर्क टुगेदर टू मास्टर देयर फोर्थ ऑफ द मटेरियल एंड आल्सो टू डिस्कवर द बेस्ट वे टू हेल्प अदर्स टू लर्न। ये उन्होंने कर लिया। फिर ऑल एक्सपर्ट्स देन गो टू देयर होम टीम्स, वापस चले जाती हैं अपना अपना। अब हर एक टीम में एक पर्सन फर्स्ट का लॉ का पहला पोर्शन अच्छी तरह लर्न करके आया है, दूसरा टीम मेंबर सेकंड लॉ का कोई पोर्शन तैयार करके आया हुआ है, तीसरा वो। अब वो आपस में पढ़ेंगे, वो सारे टीम मेंबर्स अपना अपना पोर्शन उनको पढ़ाएंगे। मान लो आपने 2 लेक्चर्स इसमें लगा, तीसरे में आपने प्रेजेंटेशंस करवा ली, या वो भी ना कराओ, आप राउंड ले रहे हो, एक छोटा सा क्विज दे दो। हुआ क्या, आपसे पढ़ते वक्त उनको दिक्कत आनी थी, आप सारे सिलेबस में से एक चैप्टर सिर्फ कोलैबोरेटिव लर्निंग से करें, जिग्सा टीम से। अब जिग्सा में ये देखिए इस तरह का कुछ पिक्चर बनता है, आपकी टीम्स बनी हुई हैं, हर टीम्स में से आपने एक्सपर्ट निकाल लिए, एक्सपर्ट निकाल के आपने एक नई टीम बना दी, ये एक्सपर्ट टीम्स बन गई। एक्सपर्ट टीम्स ने अपने अपने पोर्शन तैयार कर लिए, वापस अपनी टीम्स में चली गई, और वो स्प्रेडिंग इफेक्ट उनको कर दो। आपने कुछ नहीं पढ़ाया, आप छोटा सा क्विज लो, जहां गैप्स हैं स्टूडेंट को फीडबैक दो, और लेक्चर सारा हो गया। अच्छा, गुड, वेरी गुड, हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, हेलो, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये चीज मैं बताऊं, ये चीज कहीं से नहीं आई है, ये लोगों ने, एजुकेटर्स ने देखा है कि स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ रहे हैं,
वो कहते हैं, अब आई एम कमिंग टू यू, वो सोचते हैं कि अगर ये स्टूडेंट्स आपस में करके एक ग्रुप में लिमिट रह जाती है, क्यों ना हम 50 की क्लास में बढ़ा दें। अब आप देखो, अगर आपके फर्स्ट 2 चैप्टर्स 100% स्टूडेंट को आप एम करके चल पड़े हो, मान लो कुछ है जो नहीं कर पाएंगे, आफ्टर जब एक एक्सपर्ट टीम बैठेगी, पहले तो एक्सपर्ट अपना टॉपिक तो अच्छी तरह बना देगी, एक्सपर्ट टीम वापस जाएगी, 80% लोगों को वो पढ़ाएगी। पहले 2 चैप्टर्स में क्या है, पूरे सिलेबस के बेसिक्स हैं, बेसिक्स आ गए, 30-35% मार्क्स उसके कहीं गए ना। आपने जो चीज वो हॉस्टल में जाके कर रहे थे, आपने वहां करवा दी। अगर थोड़ा सा मान लो टाइम आपको ज्यादा भी लगता है, पर जो आप गेन करेंगे दैट इज मच मोर। कहाँ तो मैं कहती हूँ आप एवरेज को भी लेवल हाई कर देंगे, लो का भी लेवल हाई कर देंगे। यू मे नॉट अचीव 100%, बट यू विल डेफिनेटली अचीव। और स्किल्स कितनी डेवलप होंगी, आप जस्ट ये देखो, बोला एक कॉन्फिडेंस बना कि मैंने अपनी टीम को जाके पढ़ाना है, क्योंकि हर एक पढ़ा रहा है। ये तो है नहीं ना कि कोई नहीं पढ़ा रहा, हर पर्सन अपनी टीम में वापस जाके कुछ पढ़ा रहा है। तो इवन लो एबिलिटी वाला सोचता है मैं पढ़ा तो नहीं सकता, क्या करूं, वो कहेगा अच्छा चल तू मेरा ना रिटर्न मटेरियल देख ले, समझा दूंगी, कुछ तो किया। तो वो जो ओनरशिप आई कि मैंने कुछ किया है, कॉन्फिडेंस दिया, कम्युनिकेशन बढ़ी, लर्निंग आपके लेक्चर से जितनी नहीं होनी थी उतनी उन्होंने खुद कर ली। इट इज द एम। करो ना, यू ट्राई एंड गिव मी द फीडबैक। हाँ, कर रखा नहीं, आप अपने लेवल पे कर रहे हो ना, क्लास में करो, क्लास में करो। हाँ जी, कोई क्वेश्चन आ रहा था मुझको, सॉरी। हेलो मैडम। हाँ जी सॉरी, हाँ जी बताइएगा। हाँ, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम बीकानेर। हाँ जी बताइए सुभाषी। हाँ हाँ मैडम, मैं कह रहा सोच रहा था कि जो आप ये जिक्सा लर्निंग का मेथड बता रहे हैं, अपन यदि इसको वन टाइम ना करके इसी ही एक एक्सरसाइज, एक एक्सपर्ट टीम बना रहे हैं, उस एक्सपर्ट टीम को अपन सेकंड या थर्ड टाइम फिर का एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको एक्सपर्ट टीम के अंदर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा मिलेंगे। ऐसे है, ये तो एक हाइपोथेटिकल सी वो ली हुई है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी टीम्स बनेंगी, कितनी के आप ग्रुप्स बनाएंगे। एक्चुअली एम क्या है, आपने हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ पढ़ा देना है जो उसको अच्छा रट्टा लग जाए, ठीक है, फिर इतनी एबिलिटी डेवलप हो जाए कि वो अपने पीयर में जाके दोबारा उनको पढ़ा सके। तो इसमें क्या हुआ, आपने जब 5-10 जितनी भी टीम्स बना लेते हैं, उतने आपके छोटे छोटे टॉपिक डिवाइड हुए हुए हैं। मान लो आप डीसी मशीन्स लेते हैं, एक ने प्रिंसिपल अच्छा तरह याद कर लिया, दूसरे ने उसकी कंस्ट्रक्शन पे मास्टरी कर ली, दूसरे ग्रुप ने, नॉट इंडिविजुअल, दूसरे ग्रुप ने उसकी कर ली, तीसरे ने उसके फीचर्स की कर ली, एडवांटेजेस की कर ली, उसकी एप्लीकेशंस की कर ली, उसकी टाइप्स की कर ली। तो 5-7 जो टीम्स थी, सबने अपना अपना, और वो टीम जो है वो छोटे छोटे टॉपिक पे अपना एक्सपर्टाइज कर लिया उसने। साथ में आपने देखा होगा जब जिनसा मैं डिस्कस कर रही थी, तो आई सेड कि वो साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि दूसरे पर्सन को कैसे अंडरस्टैंड करवाना है, उसके लिए कौन सी एग्जांपल। हमने कहा था ना कि टीचर एग्जांपल यूज करें, अब हम टीचर नहीं कह रहे हैं, अब हम कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जो स्टूडेंट है ना वो अपने पीयर का एग्जाम्पल जानता है कि इसको कैसे समझ आएगी। तो वो अपने लेवल, उसके लेवल के एग्जाम्पल के साथ छोटी छोटी एरियाज में वो अपने एक्सपर्ट बन जाते हैं। फिर वो अपनी टीम में वापस जाते हैं, वापस जाके वो पूरे ग्रुप को पढ़ाते हैं। जब वो पूरे ग्रुप को पढ़ा रहे हैं, अब देखो हर पर्सन दूसरे ग्रुप को छोटा छोटा टॉपिक समझा रहा है, उससे क्या होगा, उसकी कम्युनिकेशन बढ़ी। जब जिसने प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन्स पढ़ाया, वो कहता है भी देखो मैंने अपने ग्रुप को प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन्स पढ़ाया है, दूसरा कहता है मैंने सबको कंस्ट्रक्शन क्लियर की है। हुआ क्या, सबकी कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस आपने बढ़ा दिया। और सबसे ज्यादा आप लेक्चर देते हैं, बुरा ना माने, मेरे साथ भी होता होगा ऐसे, कोई सुनता कोई ना सुनता, पर जब वो पीयर में थे ना और सबको प्रेजेंट करना है, तो सारों के एंटीने ऑन है, ठीक है, सबने, सबको पता है मैंने ग्रुप को जाके ये पढ़ाना है, चाहे छोटा सा क्वेश्चन है, तो उसने सुनना भी है क्योंकि बाद में आपने क्विज लेना है। तो अगर आप जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं ना, आप 1-2 चैप्टर्स पे ये करके देखें, अगर फेल होते हैं, यू जस्ट गिव मी द फीडबैक। डेफिनेटली मैडम, वी विल इंप्लीमेंट इट, डेफिनेटली, थैंक यू। तो इस तरह के ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग के मैंने जस्ट 2 मेथड्स ही लिए हैं, इसकी कई इंस्ट्रक्शनल एग्जांपल्स हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल। उसमें होता है कि जैसे नंबर्ड हेड्स टुगेदर,
उसमें होता है कि स्टूडेंट्स को नंबर दे देते हैं, तो उस ग्रुप ने वैसे तैयारी करनी होती है, पर मैं अभी उन चीज़ों में नहीं जाऊंगी। आई फील जो दो हैव गिवन दी नेम्स ऑफ दीज मेथड्स, पर मैं ज़्यादा इनमें नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ टू बिगिन विद आप इन दो को लेके चलिएगा और जितनी स्किल्स हम इनसे डेवलप कर सकते हैं we move towards that. So this was all about the collaborative method, and let me just share with you one thing more, what collaborative learning is not. Sorry, इसको मैं छोड़ रही हूँ। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि लोग झगड़ा कर रहे हैं, तूने अच्छा नहीं बताया। अगर कोई अजीत मेंटर का काम है, टीचर का काम है कि ऐसे कन्फ्लिक्ट्स में स्टूडेंट्स ना जाएं जहां है टीचर हैज टू इंटरवीन। मेंबर सिट्स क्वाइटली, आप देखेंगे कई जगह पे स्टूडेंट को नहीं कंसेप्ट आता है, वो चुप बैठा रहता है, आप कहते हो कोई बात नहीं तुम थोड़ा काम कर लो। अब ये जो लीडर बनते हैं उनको यही समझाना होता है साथ में कि अगर कोई बच्चा ज्यादा नहीं बोल पाता है, नहीं कर पाता है, उसकी थोड़ी टीचर हेल्प करेगा, उस ग्रुप को उस पोर्शन के लिए टीचर थोड़ा सप्लीमेंट कर देगा उस ग्रुप में। तो ऐसे रोल्स टीचर को लेने होंगे। पर अगर कोई बच्चा बिल्कुल चुप रहता है तो वो कोलैबोरेटिव लर्निंग नहीं है। वन मेंबर डज द वर्क, जो अक्सर होता है, आप देख लो असाइनमेंट्स देते हो, एक करता है बाकी टुक्को मारते हैं, ठीक है, तो वो चीज नहीं है कोलैबोरेटिव लर्निंग कि एक करे बाकी गुलाब जामुन खाए। So then no one does the work because the one who normally works hardest doesn't want to be a sucker. So वो नहीं चाहता कि मेरा ही खून चूसते रहो। So ऐसी नहीं होना चाहिए। Then more talented member may come up with all the answers. तो मेरे को सारा आता है, कोई ना पढ़ो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सारा डिक्टेट करा दूंगा। That is not collaborative learning. तो उसमें टीचर ने इंटरवीन करना है कि कोई डिक्टेट नहीं करेगा, सब आपस में आइडियाज देंगे, क्योंकि टीचर का काम तो खत्म हो गया ना उस वक्त। तो टीचर ने यही सारी चीजें देखनी है कि रियल सेंस में कोलैबोरेटिव लर्निंग ना हो और लोग ऑफ ना जाएं कि हाँ एक ने बर्डन ले लिया बाकी फ्री बैठे हैं, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोलैबोरेटिव लर्निंग। इफ यू हैव क्वेश्चंस फ्रॉम एनी सेंटर यू आर मोस्ट वेलकम। यस, थैंक यू।